Okay, so let's take a look at the first RC. Now, how many of you did this? कभी भी, अभी की, पहले की, कभी भी की? So there are what 9, 10 of you, 11 of you. Okay, ठीक है. So let's discuss this RC. This is not. See, we have been reading about Machiavelli. Machiavelli के बारे में तो हम काफी पढ़ते रहते हैं, right? अलग अलग RCs में और passages इसमें. So idealism in international relations, like realism, can lay claim to a long tradition. These guys were all political idealists who believed that there were some universal moral values on which political life could be based. Late 15th century, when Niccolo Machiavelli was born, the idea that politics, including relations, should be virtuous, methods of warfare should remain subordinated to ethical standards, still predominated in political literature. So what he's suggesting here is that before this guy came into picture, okay, it used to be thought that there are certain moral values which states here means countries should adhere to, and all the warfare and other things should remain subordinate to those ethical standards. That means you cannot do anything if you are a state, and for your interest and for your benefit, you cannot. You will have to stick to ethical standards or moral values. तो ये morality और ये है, ऐसा prevalent था belief. Now, Machiavelli challenged this well-established moral tradition, thus positioning himself as a political innovator. Novelty of his approach lies in his critique of classic Western political thought as unrealistic and in his separation of politics from ethics. Thereby lays the foundation for modern politics. तो उसने कहा देखो पॉलिटिक्स और एथिक्स, तो पहले ये पॉलिटिक्स और एथिक्स को एक ही माना जाता था कि पॉलिटिक्स में भी एथिक्स होनी चाहिए, बट ही चैलेंज्ड इट एंड ही गेव एन अप्रोच दैट सेज दैट पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एथिक्स. ये अलग है, ये अलग है, पॉलिटिक्स ये है, ये एथिक्स है, दे शुड रिमेन सेपरेट, and therefore he laid the foundation of modern politics. So Machiavellianism, अब ये इसके ऊपर Machiavellianism बन गया है, is a radical type of political realism that is applied to both domestic and international affairs. Domestic affairs means अगर एक स्टेट और कंट्री को अपनी whatever interest है उसके safeguard करने हैं, तो domestically भी वो जो चाहे कर सकता है. They can overrule ethical standards, and international affairs also. It is a doctrine which denies the relevance of morality in politics and claims that all means, moral and immoral, are justified to achieve certain political ends. तो अगर आपको सिटीजन्स को सर्वेलेंस कराना है, अगर आपको सिटीजन्स का कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब करना है, या जो करना है आपको फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट. दैट्स व्हाट ही इज सजेस्टिंग. And also for international affairs, Machiavelli never uses the phrase ragion di stato or French equivalent raison d'etat. So raison d'etat is a philosophy or an ideology which says that the interest of the state, okay, the interest of the state has to be paramount. Interest of the state. Okay, so this shows that is paramount. Rest all is subservient to it. But what ultimately counts for him is precisely that. Whatever is good for the state rather than ethical scruples or norms. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे Machiavellianism क्या है ये बताया गया. Referring to Machiavelli, Henrik declared that state was power precisely in order to assert itself as against other equally independent powers, and the supreme moral duty of state was to foster this power. He considered international agreements to be binding only in so far as it was expedient for the state. अब ये एक टर्म है जो बहुत बार frequently यूज होता है और आपको पता होना चाहिए. Anybody knows the meaning of expedient? It is a very very frequently used term and we should know the meaning of it. Okay? Quick. क्या चीज? Fast. नहीं, वो तो expedite होता है. Okay. See, expedite means to hurry. जैसे please expedite, so please rush, please hurry. So expedite is different, expedient is different. Growth, नहीं, expedient does not mean growth. हाँ? So convenience of for the state. Convenient, see, देखो expedient मतलब ये होता है कि convenient और beneficial. Okay, it could be for a state, it could be for an individual, but it is used more in terms of a state, convenient state or a political party. Something which is convenient or beneficial, either, so even if it is immoral, okay, or wrong, मतलब अगर morally कुछ चीज गलत भी है, immoral है, लेकिन वो आपको benefit दे रही है, that is called expedient. तो political expediency, this is a statement that is, this is a term that is used very very frequently. अब ये political expediency क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे
रेवड़ी पॉलिटिक्स होती है। रेवड़ी पॉलिटिक्स मतलब कि जो बांटते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। कोई कहेगा कि 1,000 रुपए दे दो, ले लो लाडली बहना के नाम पे। कोई कहेगा कि ये माफ कर देते हैं। कोई कहेगा कि चावल फ्री ले लो 5 किलो पर मंथ। कोई कहेगा लैपटॉप बांट देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ ऑल इलेक्शन ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज मेक सम प्रोमिसेस। केजरीवाल इज द फॉरमोस्ट। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री दिस, फ्री दैट इज ऑल पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी. That is all for their convenience or benefit. Whether it is immoral or not, nobody gets into it. Okay, so expedient for the state means something that is beneficial, even if it is immoral. Okay, तो international agreements to be binding only as insofar अगर आप किसी कंट्री के साथ में इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हो कि हम लेट्स से आपको अटैक नहीं करेंगे, या आप हमें या लेट्स से वी डू सम काइंड ऑफ अदर एग्रीमेंट विद अ कंट्री, एंड ओनली एज लॉन्ग एज इट इज बेनिफिशियल फॉर अस. अगर हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो हम तोड़ भी देंगे उसको. The idea of autonomous ethics of state behavior and concept of real politics was there introduced. तो इसको रियल पॉलिटिक नाम दे दिए है इस तरह की चीजों को. Traditional ethics was denied and power politics was associated with a higher type of morality. These concepts, along with belief in superiority of Germanic culture, served as weapons with which German statements from the 18th century to the end of Second World War justified their policies of conquest and extermination. तो ये जो हायर मोरालिटी है, कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके कि हमें जो करना है हमारे बेनिफिट के लिए, अलॉन्ग विद द बिलीफ इन सुपीरियोरिटी ऑफ जर्मेनिक कल्चर, उन्हें अपने कल्चर के अंदर भी उसकी सुपीरियोरिटी के ऊपर बिलीफ था. ये दोनों चीजें मिला के उन्होंने दुनिया में तांडव मचा दिया. जो हमें पता है कि जर्मन्स ने किस तरीके का एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तांडव मचाया था, राइट. सो दैट लेड टू एक्सटर्मिनेशन एंड कॉन्क्वेस्ट. सो दिस इज वेयर द सीड्स वर सोन, so to say. Machiavelli is often praised for his prudential advice to leaders, which has caused him to be regarded as founding father of modern political strategy, and for his defense of republican form of government. There are certainly many aspects of his thought that merit such praise. तो इसको कई लोग प्रेज भी करते हैं कि आपने लीडर्स को अच्छी एडवाइस दी है. प्रुडेंशियल मीन्स वाइज एडवाइस, और उसको फाउंडिंग मास्टर बोला जाता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. और कुछ लोग, काफी सारे लोग उसको तारीफ भी करते हैं. नेवरदलेस इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी हिम एज अ थिंकर हु बेयर्स फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीमोरलाइजेशन. तो इसका दूसरा साइड ये है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमोरलाइजेशन ऑफ यूरोप. द आर्गुमेंट ऑफ द एथेनियन इनवॉइस प्रेजेंटेड इन थुसीडाइड्स दिस and that of this guy, all these challenge the ancient view of unity of politics and ethics. तो ये लोग भी थे. ये जो यहाँ पे बताया गया है कि थुसीडाइड्स था, उसने मिलियन डायलॉग लिखी, और लिखी नहीं किया होगा, और ये थ्रेसीमैकस कोई होगा प्लेटो की रिपब्लिक बुक में, और या फिर ये जो था, तो इन लोगों ने ये पहले से ही चैलेंज कर रहे हैं एंशिएंट व्यूज ऑफ यूनिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स और एथिक्स एक है. ओके, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज एथिक्स, दे आर द सेम. दिस व्यू हैज बीन चैलेंज्ड बाय दिस गाइज आल्सो. However, before Machiavelli, this amoral or immoral mode of thinking had never prevailed in mainstream of political Western thought. It was the force and timeliness of justification of resorting to evil as a legitimate means of achieving that persuaded so many thinkers, practitioners, followers. Tension between expediency and morality lost its validity in the sphere of politics. Concept of double ethics, private and public, that created further damage to traditional customary ethics was invented. Double ethics, public में कुछ और private में कुछ और. The doctrine of raison d'etat ultimately led to politics of Lebensraum, 2 world wars and the Holocaust. So इस तरह से इसमें ये बताया कि कैसे जो इसकी आइडियोलॉजी थी, इसने how did it lead to the decline in morality in Europe, and how did it lead to all these world wars, Holocaust, and all these horrors. लेबेंसरॉम क्या होता है? लेबेंसरॉम इज बेसिकली, सो ये कोई बहुत कॉमन वर्ड नहीं है. लेबेंसरॉम बेसिकली इज अ टेरिटरी दैट अ ग्रुप, स्टेट और नेशन बिलीव्स इज नीडेड फॉर इट्स डेवलपमेंट. Okay, so that's basically justifying that we need this territory for our development, so we'll need to have it, and therefore we will invade it and acquire it. Okay, so is the passage clear now, and how clear it was when you read it? So clear है passage. सर पैसेज इजी था, बट सर क्वेश्चंस में जो ऑप्शन थे ना, थोड़े मतलब थोड़ा दिक्कत हुआ था उसको निकालने में, उसमें थोड़ा टाइम लगा था. ठीक है, तो अभी आते हैं उसके ऊपर. यस अदिति. Sir, can you explain once the concept of real politic? रियल पॉलिटिक मतलब यही है. रियल पॉलिटिक मतलब कि आप रियल पॉलिटिक, पहले क्या था कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को
एक ही माना जाता था कि जो द पॉलिटिक्स एंड एथिक्स वर सेम, यू हैव टू ऑपरेट इन पॉलिटिक्स विद इन द बाउंड ऑफ एथिक्स. But Machiavelli said that these two are not the same, and he said, let's separate politics from ethics. Okay, we will do whatever is needed, whether it is ethical or not, in order to further our interests or in order to sustain our interests, right? And this is called real politics. ये जो पूरा है कि एक स्टेट जो है उसका जो अल्टीमेट रीजन है और उसका जो अल्टीमेट एम है वो अपना पावर को असर्ट करना, और जो उसकी सुप्रीम मॉरल ड्यूटी है वो यही है कि आप अपनी पावर बढ़ाओ. और इस टाइप की जो पॉलिटिक्स होती है जो कि एथिक्स से सेपरेटेड होती है, इसको कहते हैं रियल पॉलिटिक्स. उसने एक रियल पॉलिटिक कॉन्सेप्ट बोल दिया. Okay, sir. Okay, so this real politics you can distinguish from earlier politics, because that earlier politics had ethics in it and this real politics does not have ethics in it. There is a higher type of, अभी higher जो ब्रैकेट में इसने लिख दिया है कोट्स में, तो higher type of morality means कि जो morality हमारे लिए है, हमें जो काम आएगा वो ही हमारे लिए moral है. So this is the kind of higher type of morality, not the usual morality. तो इसको मतलब ऐसे नहीं समझना है कि morality का और एक और स्टेप बढ़ गया. मतलब whatever suits me, I consider that as moral. That's it. That is a higher type of morality. Okay. The author will least approve of which of the following statements about essence of real polity. So what's the answer? Delhi. Let's understand each and every option here. It incorporated reasoned attack into national politics leading to world wars. Is it true? Real politics जो है उसके कारण incorporate हो गया. Reason attack means कि whatever is the interest of the state, Yes, that sir. will be the foremost thing. ये आ गया और उसके कारण वर्ल्ड वॉर हो गया. तो ये तो ट्रू है. So author will approve of it. The moral conflict that prevented policymakers from using evil for political ends was vanquished by double ethics. ये भी बोल रहा है कि ये जो evil को नहीं यूज करते थे, right? ये जो evil है, it was the force and timeliness of his justification of resorting to evil as a legitimate means that persuaded so many thinkers who followed him. Tension between this concept of double ethics created further damage. तो ये भी हम definitely इससे infer कर सकते हैं कि author will approve of it, right? Politicians dispensed with traditional ethics in favor of expediency and national interest. Yes, surely this is what we've been talking about. You dispensed with means they let go of, okay, or they did away with traditional politics. They left, okay. So they abandoned traditional ethics. So correct answer D है इसमें. It favored a higher type of morality that instigated a belief in the superiority of one's culture. अब देखो इसमें the same problem in this option is that there are two parts to this. One part is correct. This is okay. It favored a higher type of morality. This is okay. But is it true that instigated a belief in superiority? क्या इसके कारण superiority of one's culture में belief आया है क्या? No. Superiority of one's culture is different. अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे that these concepts means this higher type of morality या real politics या whatever you want to call it, raison d'etat, जो भी बोलना चाहो आप, along with belief in superiority of Germanic culture served as weapons. That means ये belief in superiority of German culture was not related to real politics. ये जो आपका option है, this tries to tell you that it is a cause and effect, isn't it? That cause is that real politics, and the effect is that you are believing in superiority of your own culture. That is not shown there. Okay, so this is wrong, isn't it? ये अलग चीज है, वो अलग चीज है. So these concepts, along with the belief in superiority of Germanic culture, justified their policies. Is it clear now? जिन लोगों ने गलत किया था, is it clear, or you have any doubt? सर बोलो. सर इसमें जैसे सर मेरे को जैसे मैं सर सी मार्क किया था उस टाइम पे, क्योंकि सर मेरे को बहुत क्लोज लग रहा था ये ऑप्शन अरे यार एक्चुअली. सी तो बहुत क्लियर है यार. ये तो मतलब ये तो सबसे क्लियर ऑप्शन है इसमें, isn't it? सर वो Politicians डी, dispensed. सर वो हायर मोरालिटी की वजह से लगने लग गया ना कि सर हायर मोरालिटी तो था ही उसके अंदर, जैसे पैसेज पढ़ नहीं, रहा क्यों था. हायर मोरालिटी? ये क्या है? ये था ना हायर टाइप ऑफ मोरालिटी. देखो इसने क्या किया है. सी हाउ he has created this option very smartly. He has picked this thing from here and he has picked this thing and then he has connected these two कि इसके कारण ये हुआ, जबकि वो ऐसा थोड़ी है. तो Okay, that sir. is what makes this wrong. Whereas this one is a very, मतलब ये तो आप ये देखो एसेंस है पूरे पैसेज का कि politicians dispensed with traditional ethics when real politics was introduced. Politicians ने traditional ethics को फेंक दिया उठा के in favor of expediency and national interest. So this is very clear, isn't it?
Yes, Ashank. बट सर क्वेश्चन यही था सर, वो रियल पॉलिटिक का उसमें एग्जाम्पल भी तो दे रखा है जो जर्मन्स का था सर, अरे दे भाई, आल्सो लेकिन बिलीव। आप ये नहीं पढ़ रहे हो ना, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि जर्मन का एग्जांपल दिया है, लेकिन ये क्या लिखा है इसमें, दीज कॉन्सेप्ट मींस व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल पॉलिटिक्स। तो रियल पॉलिटिक प्लस बिलीफ इन सुपीरियोरिटी led Germans to commit all these atrocities. So does it mean that real politics led to belief in superiority? यार एक वो दिया हुआ है वहां पे, रियल पॉलिटिक्स भी दिया हुआ है वहां पे, सुपीरियोरिटी ऑफ जर्मनिक कल्चर भी दिया हुआ है, बट इज इट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम? नो। ये तो आप वहां पढ़ के मैं आपको इतने क्लियरिटी से समझा रहा हूँ, आपको अभी तक समझ में आना चाहिए। यस, एनी अदर डाउट इन दिस? इट्स वेरी क्लियर है। यस आशिमा, बोलो। सर डाउट नहीं है, बस ये बोलना था कि मैंने ना बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि मैंने ये वैंक्विश्ड बाय डबल एथिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं नहीं, उसकी एक वजह मिनट। से द मुझे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट दैट प्रिवेंटेड पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम यूजिंग evil was vanquished. Vanquished means, what is the meaning of vanquished? Vanquished means defeated. Okay, you defeat something or you conquer something. तो यस जो सर। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता, ठीक है, कि जिसके कारण पॉलिसी मेकर्स इविल नहीं यूज कर रहे थे, वो अब डबल एथिक्स के कारण खत्म हो गया है। तो दिस सेंस ऑल्सो इज बीइंग वेरी क्लियरली कन्वेड बाय द पैसेज कि डबल एथिक्स जब से आ गए, रियल पॉलिटिक्स जब से आ गया, रेजन डेटा जब से आ गया, तब से जो अगर किसी पॉलिसी मेकर के दिमाग में एक कंफ्लिक्ट था कि यार हमें इविल यूज करना है कि नहीं करना है अपने एंड्स अचीव करने के लिए, वो खत्म हो गया। नाउ दे आर फ्री, or they can in their minds justify that we can use any means, moral, immoral, to achieve our interest. That's it. Okay. यस सर। All right. The author mentions Plato's Republic and Melian dialogue to highlight that. ये तो easy अहमदाबाद। question है। Yes, अहमदाबाद। अहमदाबाद। easy question है, right? He wasn't the first to oppose. ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि the argument of Athenian envoys present in all these challenge the ancient view of unity of politics and ethics. तो ये जो view है कि politics और ethics एक है, तो मेकियावेली ने आके उसको बहुत क्लियर किया, लेकिन इन लोगों ने भी पहले इस बारे में बातें की है। तो that's what he is trying to suggest, that he wasn't the first to oppose, right? बाकी के ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है, let's leave them. All right, which of the following is a statement Machiavelli cannot use to debate against idealists such as Plato and Aristotle? Now Plato, let's understand what this question is asking. प्लेटो एंड अरिस्टोटल का व्यू ये है कि पॉलिटिक्स और एथिक्स एक है, राइट? और आपको जो भी करना है वो एथिकल मींस से करना है। लेकिन मैकियावेली कह रहा है कि नो, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर सेपरेट एंड वी कैन यूज व्हाटएवर मींस टू अचीव आवर एंड्स। तो इसमें से कौन सा वो यूज नहीं करेगा, राइट? 3 स्टेटमेंट यूज कर सकता है या इररिलेवेंट हो सकते हैं, एक यूज नहीं करेगा। तो बॉम्बे। ऑब्वियसली जो 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 इन फेवर ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स होगा कि नहीं नहीं हमें एथिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ही रखना चाहिए, that he cannot use, isn't it? So which one is that? बॉम्बे। 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 Bombay. बॉम्बे। Ethical values have a foundational role in determining the appropriate ends and limits of politics, as they have antecedent authority over political values. So this option is suggesting that ethical values should prevail. We cannot separate politics and ethics. So obviously he will not use this. वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा अगर वो इस तरीके का ऑप्शन आर्ग्यूमेंट यूज करेगा, राइट? लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस. If ethics could effectively regulate behavior in political communities as it does say among friends and acquaintances, then we would not require politics. Yes, ये तो यूज करेगा वो कि देखो अगर एथिक्स से पॉलिटिकल कम्युनिटीज में रेगुलेट हो जाता है, जैसे फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस में आप लोग एक दूसरे की चीजें चुराते नहीं हो, एक दूसरे की पीठ में, ये तो बोलने की बातें हैं, करते हैं लोग, लेकिन जो अच्छे जो मॉरल लोग हैं वो ऐसा नहीं करते कि एक दूसरे को आप धोखा दे रहे हो, ऐसा नहीं करते जनरली। तो अगर जो आप फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस में एथिकल यूज करते हो, तो अगर उसी से पॉलिटिकल भी हो जाता तो फिर जरूरत ही नहीं पॉलिटिक्स की। सो दिस इज द आर्गुमेंट ही विल यूज. Morality cannot purport to guide political behavior in the same way as it guides personal conduct. Yes, same thing. Okay, same thing. It is doubtful whether ethics will provide a suitable blueprint for action. जिस डोमेन में डिसएग्रीमेंट, कॉन्टेस्टेशन, कोएर्शन चीजें हैं, वहां पे कैसे एथिक्स हम यूज कर सकते हैं? तो दिस ऑल्सो इज अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट ही विल यूज. बी इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पैसेज में ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इजी थे. ओके, वी शुड, अगर हमें थोड़ा सा पैसेज समझ में आया था तो ओके, आई maybe you could not get first also was not a difficult question, but these two were easy questions. Which of the following is not an example of higher type of morality? This is a little trickier question. What is the answer? तो दिल्ली। कलकत्ता। कलकत्ता। अब देखो इसमें which is not an example of higher type of
मोरालिटी, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल। तो हायर टाइप ऑफ मोरालिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है? कैन वी रिकैप बिफोर वी लुक एट द ऑप्शंस हियर? व्हाट इज सर द जो हायर पहले टाइप ऑफ मोरालिटी? नेशन फर्स्ट सर बेसिकली नेशन फर्स्ट, करेक्ट, नेशन फर्स्ट, बाकी चीजें गई तेल लेने, नेशन फर्स्ट, एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। मतलब आप अपने जो आपके जो सिटीजन्स हैं उनके साथ भी आप जैसे भी चाहो, जैसे शी जिनपिंग करता है कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, किसी को कुछ एक्सप्रेस करने की डिसेंट आज़ादी नहीं है, राइट? तो वो भी चलेगा। और अगर आप किसी के ऊपर जाके कब्जा करने की बात कर रहे हो, किसी की जगह एक्वायर कर रहे हो, तो वो भी चलेगा। तो नेशन फर्स्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू स्लॉट दीज different options here. Country A, which has a bilateral trade agreement with country B, enters into a new one with country C, which is a stark rival of country B. तो इसमें क्या है, क्या कुछ नो सर। इसमें लेट्स इवैल्यूएट रेस्ट द ऑप्शन। लग सकता है इसमें कि हमारा अगर एग्रीमेंट ए का बी के साथ में है, ठीक है, और जो सी के साथ में भी हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, और सी और बी जो है वो आपस में कट्टर दुश्मन है, तो इसमें हमें अब बी और सी के बीच की रिलेशनशिप को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ना तो अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि भाई बी हैज आस्क्ड अस दैट प्लीज डोंट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद सी बिकॉज ही इज माय राइवल, एंड वी प्रॉमिस हिम दैट हाँ हाँ बॉस हम आपके साथ ही एग्रीमेंट करेंगे, हम सी के साथ नहीं करेंगे, और फिर जाके आप सी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, तो ये हायर टाइप ऑफ मोरालिटी को डेफिनेटली इंडिकेट करता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट कि अगर आपने बी को वादा किया है कि भाई बी तेरा सी से झगड़ा है तो मैं सी के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा, और उसके बाद आपने उसको पीठ में छुरा भोग दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद बी एंटर्स इनटू न्यू वन विद सी विच इज अ स्टार्क राइवल, बट देयर इज नो assurance that he has given that I will not get into agreement with C. Therefore this looks doubtful कि ये क्या है कि नहीं, इसको रख लेते हैं। Country X goes to war against country Y since it brings country X greater access to natural resources. तो ये इसने लड़ाई कर ली क्योंकि इसको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, तो डेफिनेटली दिस फॉल्स अंडर दिस परव्यू, नेशन फर्स्ट इंटरनेशनली, so this is a high type of morality, so this is not the answer. Country A doesn't defend country B against a powerful opponent country C despite country A providing past service. अब ये देखो वही बात है कि आपने सी जो है, सी बी के ऊपर वो हमला कर रहा है, आपने बोला यार मैं तेरे को बचा लूंगा चीज, लेकिन आपने उसको नहीं बचाया, राइट, फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज you felt your relations might be spoiled with C, or maybe you felt that your army was not capable of fighting with C, whatever it is. तो आपने उसको past assurances दिया है, that means you had made promises and now you are going back on the promises, so which means you are basically putting nation first and you are definitely exhibiting a higher type of morality. So this is actually not the answer. Country B uses technological surveillance to curtail the, ये domestic में आ गया ये कि आप इस तरीके की चीजें यूज कर रहे हो, दीज आर इमोरल मीन्स, राइट, दीज आर नॉट मॉरल मीन्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सो यू आर डिस्प्लेइंग अ हायर टाइप ऑफ मोरालिटी। करेक्ट आंसर इसमें ए है। डज इट मेक सेंस? Yes. यस सर। यस सर। तो देखो पैसेज तो हो सकता है इसमें, अब इसमें आई एम श्योर 1 और 4 में आपको थोड़ा ज्यादा चैलेंज होगा, बट 2 और 3 इसमें इजी थे, और पैसेज वाज आल्सो आई वुड से क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वी शुड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. So I hope it's clear. We've learned some terms. Reasoned attack, which means state first. We learned expediency, which is a very important term. Yes, Prince. सर इसमें मतलब मॉक जो किए थे तुम 4 के 4 सही हो गए थे, बट एक मेडिकल वाला उठाया था वो इसने पूरा खराब कर दिया था इसका। क्या हुआ था? मतलब सर इसमें तो 4 में 4 सही हाँ, हो गए थे, हाँ, बट जो एक था ना मेडिकल वाला, हाँ, तो अभी आगे आते हैं, we'll Yes, discuss sir. that. That's why I picked up this passage. This passage was okay. वो मेडिकल वाला तो मैंने डाला भी नहीं है इसमें, इसीलिए. Let's go to the next one. All right. आर्ट लैंग्स, ये कितने लोगों ने किया? How many of you did this? 10 लोगों ने किया, ठीक है, जितनों ने भी किया, we'll discuss this. आर्ट लैंग्स मतलब आर्ट लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेजेस टू गिव डेप्थ एंड वेरिसिमिलिट्यूड. वेरिसिमिलिट्यूड मींस एग्जैक्ट likeness. Two imaginary worlds in works of fiction change and shift according to linguistic ideas different times and get us lot about popular perceptions of our own natural languages. तो जैसे वर्क्स ऑफ फिक्शन होते हैं, ठीक है, कोई भी अगर एक वर्क ऑफ फिक्शन, whether it is a book or it's
इट्स अ मूवी, जनरली इट्स लेट्स से इट्स अ बुक। वहां पे अगर हम एक ऑथर अगर कुछ न्यू लैंग्वेज या इम्प्रोवाइज लैंग्वेज बना देता है टू गिव द semblance ऑफ लाइकनेस टू इमेजिनरी वर्ल्ड्स, इमेजिनरी की जगह वो रियल लगने लगे और डेप्थ उसमें आ जाए, तो इसको हम आर्ट लैंग्स बोलते हैं। And this can tell us a lot about popular perceptions of our own natural languages. Some of the earliest examples of fictional language can be found in early modern travelers' tales, which combine interest in real world with fantasy, fantastical lands. Speakers of imaginary languages populate. अब इसने एग्जाम्पल दिए कि कहाँ पे किन वर्क्स में इस तरह की लैंग्वेज यूज हुई है। तो इसमें क्या है, इस तरह के पैसेज में पैराग्राफ जब आएगा आपको इसमें बहुत डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट नोट दैट the author has given examples of Thomas More's Utopia. ये हम we have come across this person many times, haven't we? Utopia, right? Yes, sir. Numerous islands of Gulliver Travels, unexplored parts of our planet become scarce. Writers moved imaginary lands to move planets underground. Traditional continued with Victorian art length. Victorian age भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, 19th सेंचुरी में 1800 से स्टार्ट हुआ था। In Edward Bulwer Lytton's Coming Race, speakers of Rilya inhabit. Rilya is an example of fictional language engaging with contemporary. It has resonance with these languages. So he has given multiple examples of fictional works where these art languages have been used to give depth and enhance the effect of it, right? तो अब आया टोल्कियन। अब टोल्कियन कौन है? Who is Tolkien? Anyone knows him? Sir, J.R.R. Tolkien, sir, Lord J.R.R. of the Tolkien. Rings. Yes, he wrote Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Okay, so I'm sure many of you would have seen the movie, if not read the book. This is considered to be one of the top 3 novels of all time. तो अगर किसी के पास में अभी तो नहीं, जिंदगी में कभी टाइम हो, you should read also. There are 3 volumes. Okay, 3 उसके editions भी आए थे पिक्चर के 3 parts. तो this is considered to be one of the greatest works of Sir, The Game of Thrones से पहले लगता था शायद इसके सबसे ग्रेटेस्ट बैटल सीन्स है, बट गेम ऑफ थ्रोन ने सबको बीट कर दिया है इसमें। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन is a very different thing altogether. Yes, I agree, but this also is really worth reading. In fact, if anybody is interested in reading, अभी नहीं, मतलब कभी भी लाइफ में देखो, रीडिंग आपको, you should embrace reading as you go along. Don't consider that whatever we are doing this, don't look at it in a very short term basis. ठीक है, एग्जाम में दे दिया हमने, उसके बाद में हमारा निकल गया, नहीं निकला, जो भी हुआ, आपको आगे लाइफ में जाना है। योर रीडिंग शुड बी वेरी वेरी वाइड एंड डाइवर्स. I can challenge that. Then only you will be able to really grow in life, in career. So, and then came Tolkien, who moved the goalposts considerably and established invented languages as a hallmark of modern fantasy worlds. अब Tolkien आ गया और उसने इस चीज को moving the goalposts considerably. This is the idiom, which means कि इसने he made a huge difference. So if somebody moves the goalposts considerably, that means he sets new standards. Okay, sets new standards. तो इस चीज में इसने एक नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए. इन्वेंटेड लैंग्वेजेस एज हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न फैंटेसी वर्ल्ड. ही वाज अ फिलोलॉजिस्ट. फिलोलॉजिस्ट मींस हु इज अ लवर ऑफ लैंग्वेजेस. ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट ऑन ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश, ओल्ड नॉर्स वर्किंग लैंग्वेज. इतनी सारी लैंग्वेज की उसको जानकारी थी. फॉलोइंग द इंडो यूरोपियन मॉडल ऑफ ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम प्रोटो लैंग्वेज एंड ब्रांचिंग ऑफ to form language families and then individual languages. Tolkien started by inventing base roots, modifying them. So this explains how Tolkien set new standards and what all he did to develop these fictional languages. A different tradition of linguistic invention in the 20th century finds form in dystopian fiction जो है वो, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जो है. Okay, this is a book that you must read at some point of time because this is an iconic work which tells you the tale of a society where everything is controlled, where you can't do something, you can't speak anything, you will have to follow a certain regime. जैसे वो यूटोपिया बनाने की कोशिश में डिस्टोपिया बन जाता है, उस तरह की बातें हुई है. तो डिस्टोपियन फिक्शन विच एक्सप्लोर्स लैंग्वेज एबिलिटी टू मैनिपुलेट अस. तो लैंग्वेज की एबिलिटी हमें मैनिपुलेट कर सकती है. तो जॉर्ज ऑरवेल 1984 doesn't contain many examples of न्यूज़-स्पीक. उसमें एक लैंग्वेज थी न्यूज़-स्पीक, but it explores the possibility of a language with a limited vocabulary. इस लैंग्वेज में सिर्फ 850 वर्ड्स थे, तो obviously it restricted thought. Newspeak is a drastically pared down. Pared down means cut back. Pared down मतलब cut back. English accompanied by new compounds. Invented terms such as double think, including two contrasting views at the same time without perceiving the paradox. Thought crime, thinking ideas prescribed by the party. तो इस तरह के वर्ड्स उसमें डाले गए थे इस vocabulary में.
have entered popular usage to describe the behavior of totalitarian regimes. Orwell's fictional language seemed to be responding to the Sapir-Whorf hypothesis, which argues language determines or at least influences thought and worldview. तो आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो आपका थॉट और वर्ल्ड व्यू को डिटरमिन करता है या इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है. दिस इज what is being suggested by this, and there is this Sapir-Whorf hypothesis which suggests that language determines or influences our thought process. In a similar vein, Anthony Burgess uses English as a basis but adds invented words mostly based on Russian combined with elements of Elizabethan syntax to create NADSAT. अब एक और एग्जांपल दिया NADSAT, जो कि क्लॉकवर्क ऑरेंज करके एक वर्क ऑफ फिक्शन, इसकी भी मूवी बनी हुई, तो इसमें यूज होती है. एलेक्स एंड ड्रूग्स, ये ड्रूग्स कौन है? Englicization of the Russian drug friend revel in extreme violence. Their counter culture is epitomized by their use of NADSAT, teen in Russian, which is strictly speaking slang on target rather than language. Burgess wanted his young protagonists to speak their own teenage slang that would not become outdated with time. It has aged well. NADSAT continues to create an estrangement effect on the reader. Estrangement means separation, that you are separated or alienated. Alienated. Distorting relationship with the violence that is described. मतलब ये कि अगर वो वायलेंस सपोज करो कि डिस्क्राइब हो रहा है उस लैंग्वेज में, तो आपको वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा जिस तरह की नॉर्मल लैंग्वेज में अगर वो डिस्क्राइब होता तो आपको करता, राइट. तो ये जो लैंग्वेज इसमें एग्जांपल ये बताया गया है इस वाली NADSAT का, दिस इज बेसिकली टू टेल यू दैट बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ आर्ट लैंग और दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, योर थॉट process or your perception of something can be also influenced. That means, let's say whatever violence is happening, if it is described in a normal language, which it will make you repulse. But maybe if the violence is described in this language, then it will create an estrangement effect. You will not be able to identify it the way you would have done otherwise, and therefore it will distort your relationship with the violence. So that's what is the purpose of describing this NADSAT language. Art langs over the centuries have taken readers to fictional places or even entire worlds. They are both a mirror of cultural ideas and a vehicle for artistic expression. They are an unfamiliar way to examine the most familiar element of our culture, which is language. Right? So, I hope this passage is clear. इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें भी ऐसा कोई मुश्किल मुझे नहीं था, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग था पैसेज आपको? यू वुड हैव काइंड ऑफ काफी चीजें मिली इसमें समझने की, सीखने की. यस अदिति? सर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पैसेजेस में आइडियाज थोड़े ज्यादा थे ना, तो लाइक फर्स्ट वुड बी बेटर टू चूज इन दोनों के बीच अगर हम देखें. देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो तीसरा था वो सबसे बर्बाद था, तो ये दो तो इसमें हमें करने चाहिए थे, और एक जो लास्ट में मैंने दिया. See, okay, now if let's say you are asking me कि 1, 2, 3, 4, so if somebody was doing 3, then he should have simply let go of this one. That was a pathetic passage, okay, जिसमें इकोनॉमिक और हेल्थ के ऊपर जो बातें की गई. Okay, that was the, उसके अंदर इतने सारे आइडियाज, अभी मतलब if you want I can just flash it to you, we can have a look at it, but that is not something that was a very good passage. It was pathetic and it would have taken a long time and still you would have got maybe only 2 correct. अब किसी को अगर सपोज करो 2 कर दे, तो अब हम एक काम करेंगे कि चौथा भी एक बार डिस्कस जब करेंगे ना, then we can decide that okay, if somebody had to do only 2, then what they would have done. But as per me, 1 and 2 both were doable. Okay, sir. Okay, let's look at the question. When the author points out that Tolkien moved the goalpost considerably, it is implied that. What is the answer here? देखो अब इसमें हम दो ऑप्शन बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. वो 2 ऑप्शन कौन से हैं? A and B. No one had invented languages in fantasy prior. ये तो बिल्कुल ही बकवास, I mean झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ itself talks about these languages used earlier. No creator of modern fantasy world had extensively charted the evolution of fictional languages. ऐसा भी कहीं नहीं है. यहाँ पे ये रिल लिया और ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल उसने दिए, राइट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब आप आइए सी और डी में. Tolkien transformed the creation of fictional languages for fantasy worlds into a more acceptable practice. Next says Tolkien entrenched the usage of fictional languages more firmly into the fantasy worlds of his creation. Now, what will be our immediate reaction? Which one would we go for and why? सर डी सर, क्योंकि मोर एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस के बारे में कहीं बताया गया नहीं कि पहले वाली प्रैक्टिस अनएक्सेप्टेबल. करेक्ट. मुझे when I came across this, then इसमें मुझे सिर्फ एक वर्ड थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लग रहा था, वो था his. That whether he's saying, see, when somebody says that then came Tolkien who moved the goalposts considerably and invented languages as a hallmark of modern fantasy worlds.
So when he's saying that he moved the goalpost considerably, that means this whole practice of art language in foreign fantasy world was more and deeply entrenched. And then he described how he did that, right? How his fictional languages developed. So मुझे यहाँ पे सिर्फ ये word थोड़ा सा खटक रहा था, that he entrenched the usage of fictional languages more firmly into fantasy worlds. अगर सिर्फ इतना ही होता, this would have been a perfect answer. But इसने जो ये ऐड कर दिया, तो that made me again look at this more carefully. But यहाँ पे ये पार्ट है इनटू अ मोर एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, ये टॉलरेट नहीं कर सकते हम, बिकॉज यहाँ पे एक पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बताया कि ये जो होता था तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल और देयर वर सम इश्यूज विद इट और पीपल वांटेड समथिंग बेटर एंड नाउ दिस फेलो केम एंड ही डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच मेड इट बेटर एंड मोर एक्सेप्टेबल. देयर इज नथिंग लाइक दैट टू इंडिकेट. तो इसमें इस वाले ऑप्शन में भी ये फ्लॉ है थोड़ा सा ऑफ हिज क्रिएशन. मुझे लगा, मतलब पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन अपॉन आफ्टर रीडिंग, बट स्टिल इट इज मोर. सर मैंने भी इसलिए सर सी मार्क कर दिया था सर, वो हिज क्रिएशन की ये वजह आपने से. भी इसीलिए? ओके, यस सर. okay. No, so I agree with you. I agree with you that this is also not a very good option, and that's why some of you may have marked as I was. But then this I found it more difficult to digest because there's nothing. तो इसको मैंने माफ कर दिया यहाँ पे कि चलो ठीक है, ये इसकी गलती हो गई होगी या जो भी है. But yes, you are right. This is also not a very good answer. Of his creation, this is not what should have been there. Okay, ideally, but अब है तो सर हाँ. सर आफ्टर आपने समझाया सर, इसका बी क्यों नहीं हो सकता आंसर सर? उसमें एक्सटेंसिवली चार्टर्ड द एवोल्यूशन ऑफ फ्रिक्शन कैरेक्टर सर, मतलब इन तीनों से बेटर ऑप्शन है तो सर. देखो ये जो एक मिनट, ये होता है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अब ऊपर जाओ आप. ये जो ईडियम है, ओके, idiom means what? This idiom moved the goalpost considerably means he set, as I said, new standards. Now, does it mean that there was no standard set earlier? See, suppose करो कि कोई एक एथलीट, कोई स्प्रिंटर है, तो वो स्प्रिंटर जैसे 10 सेकंड में 100 मीटर करता है. Now here comes Usain Bolt, who, so let's say earlier people did it 9.99 second, 9.98, and that's fine. That's not moving the goalpost considerably. Somebody comes and does it in 9.63 seconds. Let's say Usain Bolt. Now you can say that he has moved the goalpost considerably. मतलब अब इसने जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है. तो it doesn't mean that there was no standard prior to this. So we can't say that no creator of modern fantasy world had extended. ये जो idiom itself that doesn't kind of suggest that कि पहले कुछ नहीं था और अब आ गया ये. फिर तो इंट्रोडक्शन होता कि he was the first one, or he was the pioneer, or he was the avant-garde, or he was the he was at the forefront of this revolution, whatever it is. अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि no creator had extensively charged, तो फिर इस तरह की लैंग्वेज यूज. Moving the goalpost considerably itself suggests that there were some standards or there were certain ways in which people were doing it, and now he has done it in a much different way, which will be maybe difficult to match for other people, but it doesn't mean कि पहले नहीं होता था. Okay, इसलिए आप सेकंड को एलिमिनेट कर दो. ओके सर. All right, based on what can be inferred from the passage, which of the following most strengthens the Sapir-Whorf. अब Sapir-Whorf hypothesis जो है, okay, now this is the question which I have a challenge with. Okay, I have got a big challenge with this question. Okay, I have got a problem with this question and the options given. इस वाले में मुझे इसके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मुझे इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? अब Sapir-Whorf hypothesis पढ़ते हैं. उसमें यहाँ लिखा हुआ है, Orwell's fictional language seems to be responding to Sapir-Whorf hypothesis, which argues that language determines or at least influences our world and thought view, our thought and world view. Now, A says alien planet sends signals to Earth sharing the language because of which we learn to think like aliens do. This is fine. This strengthens, definitely strengthens, because their language, if they are sharing and we are learning to think like aliens do, this is exactly what he's saying, that language determines our thought and world view. So if we are thinking like the aliens, influenced by just their language, okay, not by their whatever is written, okay, या जो भी है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, सिर्फ उनकी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होगा. यस बाकी एनी डाउट? मुझे ना ये ऑप्शन थोड़ा इररिलेवेंट सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये बता रहे हैं कि हम जो हैं एंड हम जो कल्चर्स को उनके लैंग्वेज के बेसिस पे उनको समझते हैं, उनको जज नहीं, करते कल्चर, हैं. देखो कल्चर बहुत गलत वर्ड है. आप कल्चर की बात में अभी मत घुसो. नहीं आप सर, कल्चर नहीं बट कम्युनिटी. नहीं, कम्युनिटी, सी डोंट सी, आप यू हैव टू बी, देखो जब अगर कोई चीज किसी पैसेज में सिर्फ एक जगह लिखी हुई है तो आप इधर उधर भटक नहीं सकते हो. फिर यहाँ पे Sapir-Whorf हाइपोथेसिस क्या बोला है उसने
कि which argues that language determines or at least influences our thought and worldview. That's it. You cannot bring anything else now into picture here. Okay, you have to just look at this thing with a razor sharp focus. Now here he says that an alien planet sends signals to Earth sharing that language. Now if suppose today I've got a worldview, I'm thinking in my own language. Now the alien sends this and I now start using their language and I start thinking like them. तो ये तो बहुत क्लियर सब स्ट्रेंथन कर रहा है ना उसको, कि जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप उसके कारण आपका थिंकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है. ओके सर. हाँ, यस सर, इसमें आप अंडरस्टूड. कहाँ से कल्चर वल्चर लेके आ गए ये बताऊंगी. सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी ये अच्छा, कहते हुए. ओके. नहीं देखो, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पैसेज में कहीं पे अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हो ना, तो उसको, जैसे हम कल भी देख रहे थे कोई सा यस सर. तो उसका वो वन नियो पैराग्राफ क्लासिकल वन में वाला. था, बट देन वी वर लुकिंग फॉर इट. वो जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी वाली बात हो रही थी यस सर. ना, यस सर. और उसमें लिखा हुआ था कोई और साइकोलॉजी. तो वो आपको सी यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वेयर दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम. ओके. ओके. It has been commonly observed that languages of the people belonging to nicest culture of the planet have few pejorative. Pejorative मतलब offensive. So bad words. Harsh. Harsh. Curse. हाँ, मतलब offensive or abusive or any kind of bad words. तो मेरे हिसाब से तो ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है कि अगर मेरी लैंग्वेज, अगर मैं मतलब जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज के अंदर अगर ऑफेंसिव और अब्यूसिव वर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो इट इज अ नाइसेस्ट कल्चर, इट इज अ नाइस कल्चर. वहाँ पे ऐसी लड़ाई झगड़े की ऐसी बातें नहीं होती. तो व्हाई इज इट नॉट स्ट्रेंथनिंग? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एज पर, देखो अब इसमें एज पर द करेक्ट आंसर हैज बीन गिवन एज ए. ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं अपफ्रंट, करेक्ट आंसर इज गिवन एज ए, बट आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू एलिमिनेट बी. यस सुबह बताइए. सर लेकिन सेकंड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है कि कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर रहा है. नो, ऐसा कहाँ है? लैंग्वेज बिलोंगिंग टू नाइसेस्ट कल्चर्स हैव फ्यू पेजोरेटिव वर्ड्स. नाउ इसमें देखो, अब आप जो बोल रहे हो, मे बी यू हैव रेड द एक्सप्लेनेशन दैट हाउ दैट फेलो हैज एलिमिनेटेड इट. Okay, he has used a very flimsy excuse for eliminating it. I do not buy it even for one moment. Because, see, if you want to justify an option, then you can figure out how to justify it. Okay, removal of an option. And if you want to select an option, because you want to select an option as per your thinking, then you can have n number of ways to justify it. Isn't it? तो नहीं सर, मैंने जस्टिफिकेशन नहीं देखा है. अच्छा, नहीं देखा आपने? अच्छा, ओके. तो टेल मी नाउ, लेट मी हियर फ्रॉम यू. ओके, लैंग्वेज बिलोंगिंग टू नाइसेस्ट कल्चर. सो सपोज देयर इज अ नाइस कल्चर, ठीक है, ऑन अ प्लैनेट. तो इसके जो लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स हैं, ओके, ऑफेंसिव. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड दैट्स व्हाई दिस कल्चर इज नाइस? हाँ, ऐसे भी हो सकता है. और यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस नाइस कल्चर इज बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज. तो देखो, ये जो है ना, अगर मतलब इसको हम आर्ग्यू, क्योंकि जितना सा ये दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बेसिस पे मतलब मुझे इसमें डिफिकल्टी हुई थी इसको निकालने में. एंड सिमिलरली अगर हम सी देखेंगे, द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड स्पीक लैंग्वेजेस व्हिच आर मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव. बट दिस आल्सो सजेस्ट दैट कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उससे आपका वर्ल्ड व्यू इम्पैक्ट हो रहा है या थॉट प्रोसेस. तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये भी सही आंसर. यस सर, मैंने इनफैक्ट यही मार्क किया है. लेकिन फिर मैंने जब ये पढ़ा था ना, इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो मुझे लगा पैसेज में से कोई एक आध वर्ड सा मिलता जुलता होना चाहिए, तो मैंने सी मार्क कर दिया. वरना ये सारे आंसर सर वही हैं, सेम. वही मुझे भी लग रहा है. यस आशिमा. सर सी वाला ऑप्शन ही पूछना था मुझे भी, मैंने हाँ वही मार्क करा था. हाँ, तो देखो, अब देखो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलेगा. आई टेल यू व्हाट ही विल से. देखो यार, कि अगर नाइसेस्ट कल्चर है तो जरूरी नहीं ना कि वो लैंग्वेज के कारण हो. तो ऐसे तो मैं इसमें ए में भी कह सकता हूँ ना कि जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कोई और भी हो सकता है. और ये एलियन प्लैनेट सेल्स, तो ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट. बट दिस ऑल्सो कैन बी जस्टिफाइड एंड दिस ऑल्सो कैन बी जस्टिफाइड. द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कल्चर्स speak languages which are more positive and negative words. So this also would mean that. एंड सर बी एंड सी थोड़े से सिमिलर भी है, मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, और उसमें अ फ्यू पेजोरेटिव वर्ड्स. Yes. So I don't know. Maybe somebody might say कि ये cause and effect उल्टा हो गया. ऐसा मतलब आपने इसको correlation does not mean causation. Okay, somebody might give this argument. Let's evaluate that argument. एक बहुत important statement होता है, correlation does not mean causation. Okay. Now, if suppose this is justification given कि ये कल्चर नाइसेस्ट भी हैं और इस कल्चर के लोग फ्यू पेजोरेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, so this is the correlation. So does it mean that is because of this? Similarly,
ये कल्चर सबसे ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और इस कल्चर के लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैन वी से दैट, बट आई डोंट थिंक दैट दिस आर्गुमेंट विल फ्लाई इन दिस पर्टिकुलर case. Okay, I don't buy that. In general, I may have bought it. This argument I may have bought, but I find it difficult to accept. Maybe I'm wrong. I don't know. But at least to my mind, it seems that these two also. Rather, this question could have been framed as based on what can be inferred, which of the following does not strengthen the Sapir-Whorf hypothesis, and then we could have picked up 4 because 4 does not. देखो 4 का कोई रिलेशन नहीं है. Many languages like Japanese have words to directly point to complicated emotions that those who speak the language often feel. ये छोड़ दो इसको. irrelevant सही लग रहा है सर Irrelevant ये है. This is irrelevant. So this is anyway clearly wrong. तो मुझे ये क्वेश्चन जो था वो ऐसा बना देता अगर कोई which of the following does not strengthen, तो this would have been a more logical question. ठीक है, maybe it is me, maybe so ये देखो परसेप्शन की बात भी होती है बहुत सारी, है ना. जिसने ये बनाया उसको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा. तो that's why I'm giving you my perspective. Yes, Suvek. सर अगर ऐसा ऑप्शन होता कि दे हैव फ्यू पेजोरेटिव वर्ड्स बिकॉज दे हैव नाइस कल्चर, तो गलत हो सकता था ना. हाँ, करेक्ट. वो तो फिर क्लियरली उल्टा हो जाता ना, वो तो कॉज एंड इफेक्ट उल्टा हो जाता है. सही कह रहे हो आप, फिर तो गलत था वो, राइट. यस सर. आंसर यहाँ पे फ्यू था और फ्यू और फ्यू में आपने डिफरेंस बताया था, तो फ्यू मतलब जीरो, मतलब जीरो. नो मतलब जीरो, Yes, sir. नो पेजोरेटिव वर्ड्स, राइट. Alright, चलो ठीक है. तो this question I had a little challenge. That's why I discussed this in more detail. Let's look at the other. The author uses example of NADSAT. ये easy question है, देखो इसमें कोई difficulty नहीं है. बताइए क्या है इसमें. NADSAT का क्यों किया है कि बहुत सिंपल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. NADSAT उसने इसलिए किया है ताकि कोई भी वायलेंस जो है वो आप जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझते हो, यू मे नॉट परसीव इट इन द सेम वे, राइट. सो योर परसेप्शन वुड चेंज. सो लैंग्वेज कैन चेंज योर परसेप्शन. इस तरीके का ऑप्शन हमें ढूंढना है, और जब हमें मिल गया ऑप्शन बी में सर लैंग्वेज. वो लास्ट लाइन में दिया हुआ ही है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ के क्लियरली. हाँ दिया हुआ है, करेक्ट. यू कैन से इजीली, यू कैन से दैट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, नाउ ही सी, ये अब somebody might say कि why not one? Fictional languages can create an estrangement effect. See, that is not his. This is a very specific thing that you are trying to come to. He is not saying that this NADSAT कि ये estrangement, ये तो example है. Estrangement effect तो example है उसका. That it could create the NADSAT continues to create an estrangement effect on the reader, distorting or listening to the violence. But he has used this as an example to suggest that any of these art lines can actually alter your perception of how things are. Okay, the way you perceive, and this, if you look at it through the lens of this language, then your perception may be changed. So he's not very specifically talking about the estrangement effect. Some invented languages have stood. No, he's not saying that they have stood the test of time, and that's the example of NADSAT. Invented word distort reasons. ये violence again specific हो गया. जो problem A में है वही problem इसमें भी है कि ये सिर्फ violence के लिए नहीं है. It could be for anything. Okay, so I hope it's clear why B was the right answer. Yes, sir. All of the following can be inferred to be, ये भी easy question है, inferred to be characteristics of art lines. बताइए. ये तो easy question है यार. सर सही लग रहा था. नहीं, they can अरे यार आपने तो गड़बड़ कर दी. easy question है. दिल्ली. बॉम्बे. ना यार. They can originate from proto language and branch off. ये तो बहुत clearly दिया हुआ है यहाँ पे, right? Proto language और branching off, ये लिखा हुआ है, all originating from same proto language and branching off, very clearly given here. They are created to demonstrate the ability of language to manipulate us. Is this the reason of their creation? यार ये मतलब आपने ये art lines जो है ये क्यों create करते हैं authors, बताइए. What did we understand from this passage? Why are they created? We discussed this in depth in the passage, didn't we? सर ये ऑप्शन ही पढ़ा है, ये तो मैनिपुलेट तो. सर एक आइडिया है इस ऑप्शन को एलिमिनेट मतलब या आंसर पे पहुंचने का. सर ये आर्ट लाइंस वाला जो पैसेज था वो कितना पॉजिटिव था, मतलब ऑथर की टोन, लास्ट वाला पैराग्राफ. तो ये मैनिपुलेट वाला वर्ड इज वेरी नेगेटिव. Correct. Exactly. So the whole thing was presented in a very positive way, that how it has influenced our understanding of language, and how the various authors have used it to create more depth into the whatever they are writing. So it has been used in a positive sense. But this one says its ability to manipulate us. So this is not the purpose of creation, isn't it? So ये तो मतलब this should have been very easy to spot. Okay. They are invented in order to lend authenticity to fictional fantastical words. Yes, they may allow to follow similar rules to those existing in contemporary linguistics. ये भी दिया हुआ है इसमें. B was a clear choice here. सर ये सी में लैंड ऑथेंटिसिटी कहाँ से हमने वो किया, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था.
क्यों? कई जगह पे दिया हुआ है। ये रियल वर्ल्ड विच कंबाइन इंटरेस्ट इन रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन विद फैंटास्टिकल लैंड्स, स्पीकर्स ऑफ अनएक्सप्लोर्ड पार्ट बिकम्स, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको पढ़ोगे तो इसमें ओवरऑल यू कैन डेफिनेटली इन्फर कि ये उसमें ऑथेंटिसिटी डालने के लिए इसमें दिया हुआ है। टोल्कियन वगैरह का भी और कहीं पे भी और भी दिया हुआ है, ऑथेंटिसिटी के लिए होता है, ये मिल जाएगा आपको, नहीं तो इन्फर करना पड़ेगा। देखो ओके कई सर। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो राइट आंसर है दैट स्टेयर्स एट यू, मतलब you cannot actually then even look at, you should not look at and evaluate other options because that thing is very very blatant, very obvious, and this was one such case। मतलब ये एक वर्ड के कारण आप इसको मार्क कर सकते हो कि very clearly this was not the purpose of creating this language। yes मानव। सर मुझे एक फिफ्थ में चीज पूछी थी, फिफ्थ हाँ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में एक चीज हाँ पूछी थी बस, कि सर जो आपने डी ऑप्शन बताया था उस वाले में अगर वो लास्ट वाला पार्ट हटा देता ना, ऑफिस क्रिएशन, तो फिर सही हो जाता ना, मतलब और बेटर हो जाता ऑप्शन हाँ ये हाँ वाला। करेक्ट, that's what I said, yes ठीक है सर, बस ये था। all right, let's look at this। Because insects are legend inconspicuous and hard to meaningfully track, the fear that they might be far fewer than before was more felt than documented, a feeling so common entomologists developed a shorthand, the windshield phenomenon। मतलब ये कि यार इंसेक्ट इतने सारे हैं, तो अगर आपको कोई बोले कि यार अभी इंसेक्ट बहुत कम हो गए हैं, जैसे आपको कोई बोले कि यार मच्छर जो है वो आज की तारीख में बहुत कम हो गया है, विड यू एवर बिलीव? वैसे पागल हो गए क्या? कितने डेंगू के केसेस हैं, कितने देखो बेचारे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मर भी जाते हैं, तो हाउ कैन यू इवन से दैट कि इंसेक्ट्स कम हो गए? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है विच इज द विंडशील्ड फिनोमिनन। ह्यूमंस आर नॉट ग्रेट एट रिमेंबरिंग द पास्ट एक्यूरेटली, दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इट कम्स टू चेंजेस इन natural world। In decades of photos of fishermen holding up their catch in Florida Keys, marine biologist Lauren found a perfect illustration of this phenomenon, which is often called shifting baseline syndrome। The fish got smaller and smaller to the point where prize catches were dwarfed by fish that in the past years were piled up and ignored, but the smiles on fishermen's faces stayed the same size। तो अब देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि पुराने जमाने में, ठीक है, डेकेड्स पहले जो ये फिशरमैन थे, जब ये समुद्र में से मछली पकड़ के आते थे तो इनकी फोटो ली जाती थी, होल्डिंग अप देयर कैच, जो भी वो पकड़ के लाए उसकी फोटो आती थी। तो वो मछलियां बड़ी बड़ी होती थी, राइट, दी मछली यूज्ड टू बी ह्यूज। तो इनके साथ में इनकी फोटो होती थी और उनकी स्माइल इतनी ही चौड़ी होती थी, ठीक है। अब जैसे जैसे डेकेड्स चले जा रहे हैं, ये जो मछलियां अब पकड़ के लाते हैं ये इतनी छोटी कि उसको वो फेंक देते हैं। मतलब उस टाइम पे इस जमाने में इन मछलियों को इग्नोर कर दिया जाता था, अब ये इतनी बड़ी मछली लाके फोटो खिंचा रहे हैं और उनकी स्माइल उतनी ही चौड़ी है, राइट। सो व्हाट इज सेइंग इज कि व्हाट इज ही सजेस्टिंग हियर कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि कैसे थिंग्स चेंजेस टू द नेचुरल वर्ल्ड इफ वी डोंट रजिस्टर। मतलब पहले भी हम उतने ही खुश होते थे जबकि वो मछलियां बहुत बड़ी होती थी, राइट, अब छोटी हैं तो भी हम उतने ही खुश हैं। तो दिस शोज दैट दिस शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम, द बेसलाइन इज शिफ्टेड नाउ, दैट मीन्स यू आर हैप्पी बाय व्हाटएवर इज लेस, ठीक है, पहले के जमाने में जो था उसके बजाय अब, राइट। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ दिस फ्लोरिडा कीज गिव्स यू। What we are losing is not just the diversity but part of biodiversity, but the bio part, life in sheer quantity। For example, world's largest king penguin shrank by 88%, 93% of bluefin tuna, finding reassurance in survival of few symbolic standard bearers ignore the value of abundance। तो जो बच गए उसमें आप रीएश्योरेंस ढूंढते हो, 1413 लेफ्ट, वो टाइगर वाला था एक कैंपेन, तो आप उसमें रीएश्योरेंस ढूंढते हो। तो दिस इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ अबंडेंस। टाइगर स्टिल एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल, 93% ऑफ लैंड वेयर दे यूज्ड टू लिव इज नाउ टाइगरलेस। Large animals, especially top predators like tigers, connect ecosystem to one another and move energy and resources among them by simply by walking and eating and defecating and dying। तो ये इकोसिस्टम को कनेक्ट करते हैं। मतलब एक इकोसिस्टम में वो अगर है, वहां पे किसी एक प्रकार के जानवर है, दूसरे इकोसिस्टम में जानवर ही नहीं, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, वेजिटेशन और एनिमल्स और बर्ड्स और जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, दैट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। ओके, यहाँ पे इस तरीके के जानवर, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा इकोसिस्टम जहाँ पे दूसरे तरीके के, तो ये बोल रहा है कि जो टाइगर्स होते थे, सॉरी, दे यूज्ड टू कीप मूविंग बिटवीन इकोसिस्टम्स, राइट। तो कनेक्ट करते थे और एनर्जी और रिसोर्सेज मूव करते थे इधर से इधर। सो दैट वाज देयर पर्पस, सिंपली बाय वॉकिंग एंड ईटिंग एंड डेफिकेटिंग एंड डाइंग। In the deep ocean, sunken whale carcasses form the basis of entire ecosystems in the nutrient poor places। तो ओशन में अगर कोई वेल मर गई, कैराकैस मींस उसकी डेड बॉडी, संकन वेल, तो वो पूरा अपने आप में इकोसिस्टम का बेसिस बन जाती है न्यूट्रिएंट पुअर प्लेसेस में। मतलब
वहाँ पे it gives the nutrition or nutrient to a lot of other animals. One result of their loss is what's known as trophic cascade, the unraveling of the ecosystem's fabric as prey populations boom and crash and the various levels of food web no longer keep each other in check. तो एक उसके लॉस के कारण ट्रॉफिक कैस्केड बोलते हैं कि इकोसिस्टम की फैब्रिक ही अनरावल हो गई है, क्योंकि प्रे पॉपुलेशन, जैसे ये वेल थी, अब यह कोई भी दूसरी मछली है, बड़ी मछली, वो छोटी मछलियों को खाती है या किसी छोटे इंसेक्ट को खाती है या किसी और जानवर को खाती है, और अब अगर वो बड़ी मछली खत्म हो गई है या बड़ा जानवर खत्म हो गया तो छोटे पॉपुलेशन तहस नहस कर देते हैं कई चीज़ों को, राइट, दैट मीन्स, तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक। नेक्स्ट पैराग्राफ, साइंटिस्ट स्पीक ऑफ फंक्शनल एक्सटिंक्शन व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट but no longer prevalent enough to affect how an ecosystem works. The extinction not of a species but all of its former interaction with the environment and extinction of seed dispersal, predation, pollination, all the other ecological functions an animal once had. So functional extinction अलग चीज है, which means where the species itself vanishes, but functional extinction means कि it affects the ecosystem, कि वो पूरा species खत्म नहीं हुआ लेकिन उसका functional extinction हो गया है, ठीक है, उसके जो interaction with the environment है, तो अब एक स्पीशीज है जैसे कोई बर्ड्स होती है या कोई जैसे इंसेक्ट्स हैं, तो वो सीड डिस्पर्स करते हैं, प्रीडेशन, पॉलिनेशन करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेट करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन आर made extinct, that is functional extinction. The more interaction laws, the most disordered the ecosystem becomes. Paper in Nature suggested that laws of even 30% of species abundance can be so destabilizing that other species start going fully numerically extinct. तो अगर 30% भी स्पीशीज की अबंडेंस खत्म हो जाती है तो दूसरी स्पीशीज जो है इतना डिस्टेबलाइज हो जाती है कि वो खत्म भी हो सकती है। फेमस रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ कैस्केड कंसर्न सी ऑटर्स, तो ये एक जानवर है सी ऑटर्स, व्हेन दे वर नियरली वाइप्ड आउट इन नॉर्दर्न पैसिफिक देयर प्रे सी अर्चिन्स ballooned in number and completely decimated kelp forest. तो ये सी ऑटर खाता था सी अर्चिन को, तो जब सी ऑटर्स खत्म हो गए तो ये इतने ज्यादा बढ़ गए सी अर्चिन कि इन्होंने केल्प फॉरेस्ट को डेसिमेट कर दिया, कंप्लीटली डेवास्टेट कर दिया, टर्निंग अ रिच एनवायरनमेंट टू अ बैरन वन एंड आल्सो सर इस पे शायद हमने क्रिटिकल रीजनिंग भी करी थी इस चीज पर। हाँ, सी अर्चिन और यस यस यस, सी अर्चिन और सी ऑटर के ऊपर कई सारे बने हुए हैं ऐसे, करेक्ट, एंड आल्सो पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग टू न्यूमेरिकल एक्सटिंक्शन नोटेबली ऑफ स्टेलर सी काउ, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है। In addition to extinction, the complete loss of species and extirpation, a localized extinction. So extinction means complete loss and extirpation means कहीं एक जगह पे. Scientists now speak of defaunation, the loss of individual, loss of abundance, loss of a place, absolute animalness. It is estimated in 1970 Earth's various population of wildland have lost 60%. If you look at the world's mammals, 96% is biomass and human is and living stock, livestock. We talk about living in Anthropocene, but E.O. Wilson says it is Eremocene age of loneliness. Right, so here the concern is being shown about the author with the loss of species, not just in the form of their extinction, but in the form of functional extinction, where whatever influence they had on the ecosystem is gone, and that results in a lot of catastrophic consequences, and that's how things are. Okay, so that's what the passage is all about. Any doubt on this? तो कोई मुश्किल नहीं था ये passage, isn't it? Yes, sir. This was also an easy passage to read, nothing great about it. The author's purpose in describing the unchanged smiles is to show that कैलकाटा। ओके, अब इसमें देखो दो ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर लेते हो, कौन से ए और बी, ए एंड बी। विंडशील्ड फिनोमेनन अप्लाई नॉट जस्ट टू इंसेक्ट, ये तो है ही नहीं इसको, प्राइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये तो बिल्कुल है, ठीक है। नाउ वी कम टू दिस टू ऑप्शन, द कॉजल इफेक्ट of human forgetfulness on the degradation of planet. Now tell me, अगर ये जो मैंने आपको ये इतने अच्छे से पिक्चर बना के बताया, तो is it that they are forgetting it, or is it that this is not getting registered? It is a case of forgetting or not getting registered. Not getting registered. not getting registered. Not getting registered. This is not forgetfulness. देखो एक जमाने में सपोज करो कि आपके स्टैंडर्ड्स कुछ और थे, मतलब अगर सिंपल इसको रिलेशन करना है तो लेट्स से समबडी मे बी कोई स्पोर्ट्स की बात कर लो आप, अगर या कुछ और की बात कर लो कि एक लेट्स से टेनिस की बात करता हूँ, जो whoever मे बी द टेनिस बफ हियर, सो लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट 1970s 80s और इवन 90s फॉर दैट मैटर, व्हेन ग्रास कोर्ट्स के ऊपर जो सर्व एंड वॉली गेम होता था, स्टीफन एडबर्ग, बोरिस बेकर वगैरह आप लोगों ने देखे हो, तो इनके जो गेम होते थे प्रिडोमिनेटली ग्रास कोर्ट पे सर्व एंड वॉली करते थे, and that used to be beautiful to watch. Okay, we really enjoyed it उस जमाने में,
अब धीरे धीरे वो सर्व एंड वॉली गेम खत्म होता जा रहा है, इट इज मोर ऑफ पावर हिटिंग, स्टेइंग एट द बेस लाइन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब लेकिन क्या है, क्या हमने क्या मतलब हम ये चीज अभी भी, लेकिन जो जीतता है उसको बल्कि उससे पुराने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। दैट वाज एन आर्ट दैट इज ग्रेजुअली गेटिंग लॉस्ट। इट डजंट मीन दैट वी आर फॉरगेटिंग इट, वी फॉरगॉटन इट, इट मीन्स दैट इट डजंट रजिस्टर कि वो जो एक जमाने में हुआ करता था वो अब नहीं है, राइट। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जमाने में इतनी बड़ी मछलियां पकड़ के लोग खुश होते थे, जितना खुश होते थे आज छोटी मछली पकड़ के खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल गए हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि दे डोंट इवन रियलाइज that what we are missing out or what has happened over this period of time, what changes have come to the natural world, that we कि ये मछलियों का साइज इतना छोटा होता जा रहा है। तो क्या है, क्यों है, इनकी अबंडेंस कम होती जा रही है, क्यों? तो इस चीज के बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। तो इट डजंट रजिस्टर और इट डजंट मीन फॉरगेटफुलनेस, एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. It doesn't show the causal effect of human forgetfulness on degradation of planet. It shows the inability of humans to register the gradual decadence of the environment. कि आप ये रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हो और आप उतना ही खुश हो रहे हो बड़ी छोटी मछली पकड़ के भी। देखो, अगर आप छोटी मछली पकड़ रहे हो और उसको रजिस्टर कर रहे हो तो आप बोलोगे यार इतनी चौड़ी मुस्कान लेके क्यों खिंचाऊंगा फोटो। मुस्कान भी कम करो यार, खुश होने की बात नहीं है। पहले के हमारे बाप दादा लाते इतनी बड़ी बड़ी मछली पकड़ के आते थे, तब भी इतना खुश नहीं होते थे। आज छोटा सा काम कर दिया हमने तो बड़े खुश हो रहे हैं, राइट। तो ये इस तरीका का इसमें आर्ग्यूमेंट दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर इज डी हियर. And there is absolutely no ambiguity, no illogicality. This is a perfectly valid question. Okay, so कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, and we should have been able to actually eliminate this. ये मतलब moderate, I would call it, not difficult question. Which of the following fictional scenarios best fits the shifting baseline syndrome? बताइए, what is the shifting baseline syndrome? जो हमने कहा कि हम बड़ी मछली पकड़ते थे, आप छोटी पकड़ के ही उतने खुश हो जाते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड अहमदाबाद. अहमदाबाद. सर अहमदाबाद. Okay. Local fishermen celebrate the increase in fish stock. तो celebrate कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुस्कान दे रहे हैं, right? In a nearby lake compared to the previous 2 years, even though it is half of what it used to be 10 years ago. So पहले के मुकाबले में हम half आ रही है, फिर भी हम खुश हो रहे हैं. तो this definitely it fits this thing. We'll keep it. When residents younger than 25 years of age were asked to guess the commonest bird, 80% named the bird most commonly found. तो इसमें क्या, how does it even parallel that particular? ये पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन है. अगर हम सीआर की बात करें तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल रीजनिंग, व्हिच वन ऑफ द इज अ सिमिलर रीजनिंग. तो ये बिल्कुल गलत है. कंट्री एक्स हैज बीन इंटरनेशनली अप्रिशिएटेड फॉर इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट कवर टू 5%. इसमें क्या हो गया, अगर उसको इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिला है 5% उसने बढ़ा दिया, तो इसमें तो कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है कि पहले 10% होता था तो भी उसको शाबाशी नहीं मिलती थी, अब 5% हो रहा है तो भी शाबाशी मिल रही है. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. हो सकता है पहले नेगेटिव में चला जाता हो. So this is a genuine case that this country has really worked hard for it. So we can't say anything. That's why this is not the answer. Country J has made commercial whaling legal and after years of embargo, claiming that the whale population in seas under its jurisdiction has grown enough not to be categorized as endangered. Again, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई इसमें comparison और ऐसा कुछ नहीं है, right? So correct answer was A. All right. Using the case of tigers, the author builds the argument that this was a little challenging question, I would say. इसमें even I was confused at one point of time. So what did you mark? बॉम्बे. ए. अहमदाबाद. दिल्ली. बॉम्बे. सर ए क्यों है? एक्टिविस्ट कलकत्ता. सर ए में इम्पोर्टेंट स्पीशीज करेगा. देखो, let us read where that tiger thing is written. Again, when there is a specific question, we should go to that part and read it once. Finding, so for example, world's largest penguin colony का blah blah दिया है इसने. Finding reassurance in survival of a few symbolic standard bearers. Does it mean important? Where is it written important here? Ignores the value of abundance. कि अगर छोटे थोड़े बहुत बच गए हैं. Symbolic standard bearers मतलब इनको माना जाता है कि ये जो है जानवर represent करते हैं, you know, the entire animal community. It doesn't mention that these are important ones or not. ऐसा कहीं नहीं बोला उसने. Ignores the value of abundance. Tigers still exist, but 93% of land where they used to live is now tigerless. Large animals, especially top predators, connect ecosystems. Right? तो ये यहाँ से यहाँ तक टाइगर की बात. तो इसमें ये important वाली बात कहाँ पे है? ठीक है, rather than the mere survival. दूसरा, एक्टिविस्ट कहाँ से आ गए? मतलब उसने कहीं एक्टिविज्म की बात करी है क्या इसमें कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें बचाना चाहिए? देखो, एक चीज होती है कि वो आपको अवेयर करा रहा है कि कितने कम बचे हैं या कितना लॉस हो गया है. So is that the purpose of this passage, or trying to recommend ways to
bring back the population or ways to reduce their disappearance or functional extinction. What is he trying to tell you in this passage? He's making you aware, isn't it? Or he's giving you some dawai or recommendation or goli also. नो सर. नो ना, तो इसके हिसाब से हमको एक तो एलिमिनेट कर देना चाहिए, एक्टिविज्म वगैरह की बात ही नहीं हुई है इसमें, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है ऑप्शन। सर ये अबेंडेंस वर्ड की वजह से इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया, वरना अच्छा, लार्ज प्रेडेटर्स आर इम्पैक्टफुल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन बिग नंबर्स एंड नॉट सिंपली सर्वाइविंग, इसको रख लेते हैं। तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट बी एंड सी, देयर इज नथिंग रीएश्योरिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स बिकॉज ऑफ देयर लो नंबर्स, because their low numbers make them functionally extinct. This looks like an attractive option. The celebration of survival of tigers take away the focus. Celebration नहीं हो रहा है भाई इसमें, ये बिल्कुल गलत है. There is no celebration. This is wrong. Now let's look at B and C more carefully. Can we justify this part? Make them functionally extinct. Has he mentioned explicitly that? सर पैसे से कर सकते हैं ना, दो नहीं, नंबर। सर उससे नेक्स्ट पैसेज में लिख दिया है यही बात। नहीं, लेकिन ये किसके लिए लिखा है? क्या ये टाइगर के लिए लिखा है? Scientists speak of functional extinction when animals and plants are present but no longer prevalent enough to affect how an ecosystem works. Now here, tigers still exist. Large animals especially connect ecosystems and this. So has he said that it has stopped happening? देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता कि large animals like tigers connect ecosystems and now because of their low numbers they have stopped doing so, or their ability to connect ecosystems has gone down or it is almost extinct now. ऐसा अगर कहीं लिखा होता तो हम डेफिनेटली इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज को बताया गया है फंक्शनल एक्सटिंक्शन. बट फंक्शनल एक्सटिंक्शन हैज बीन पिक्ड अप और दैट पर्टिकुलर टर्म हैज बीन टेकन अप इन द नेक्स्ट पैसेज एंड देयर इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट पैराग्राफ नो मेंशन ऑफ टाइगर हियर. So would we not be kind of going out of our maybe or making an assumption if we are saying that टाइगर जो है वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया है? तो ये पार्ट इसमें जो है ये जस्टिफाई नहीं होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस goes. This part was much better than B. There is nothing reassuring about survival of tiger. This part was in fact a better part than what it was in B. But because of this, which we cannot justify, this will go out and B will be the answer. Large predators are impactful when they're present in big numbers and not simply surviving. This is the point he wants to make. Do we agree or not? Yes, Manav. सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे वहां हो रहा था कि इसे बिल्ड्स द आर्गुमेंट कह रहा था वो. हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पहला कुछ इसे नहीं, फंक्शनली बट बिल्ड द आर्गुमेंट तो देखो, बिल्ड द आर्गुमेंट मतलब क्या होता है कि दैट मींस ही इज ट्राइंग टू मेक अ बिगर पॉइंट, इजंट नॉट? मेक अ बिगर पॉइंट. ओके, बिल्ड द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट मतलब क्या है? क्या ये पैसेज खाली टाइगर के बारे में है? इज दिस पैसेज फोकस्ड ऑन टाइगर्स नो सर. or it is No, about sir. in general bigger and large animals or whatever, torch bearers or symbol bearers or whatever it is? This is about this, right? So when author is using an example, then he's not specifically going to talk about only type. This is another point which you can use to eliminate C. Though I'm not saying that ऐसा नहीं हो सकता था. अगर देखो कहीं पे भी आपको थोड़ा सा हिंट मिलता कि टाइगर्स फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गए, चाहे वो इस सेंटेंस में मिल जाता या वो यहाँ पे कहीं मिल जाता एग्जाम्पल में टाइगर, तो आप 100% डंके की चोट पे यू कुड हैव मार्क्ड दिस सी एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट इसमें इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं विद व्हाटएवर इज गिवन. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट. हाँ I सर hope. एक और चीज पूछनी थी हाँ, इस वाले में. जैसे ऑप्शन बी में मतलब थोड़ा सा डाउट ये भी आया था कि जैसे लार्ज प्रेडेटर्स लिखा हुआ है वहाँ पे लार्ज एनिमल्स स्पेशली, तो वो मतलब सही होगा, सेम ही होते हैं ना? देखो ये तो सही है ना, टॉप प्रेडेटर्स लिखा हुआ है ना, लार्ज एनिमल्स स्पेशली टॉप प्रेडेटर्स. सी, आप उसका पॉइंट समझो क्या है. यू लुक एट द लार्जर पॉइंट. आर वी टॉकिंग अबाउट सम स्मॉल छुट्टा पुट्टा जानवर जिसका कि कोई इम्पैक्ट नहीं है इकोसिस्टम पे, जो कि खुद ही बेचारा एक बेसहारा मरा हुआ है, भिखारी है, जो कि दूसरों पे डिपेंड करता है? सी, लार्ज प्रीडेटर मतलब क्या है? लार्ज प्रीडेटर तो क्या करते हैं, अगर एक लार्ज सपोज करो एक टाइगर है, उसने किसी जानवर को मारा, तो उससे देखो कितनों का भला होता है कि एक टाइगर का पेट भी भरता है, फिर जो बची कुची हड्डियां बची कुची चीजें हैं उस उधर वुल्फ्स आ जाते हैं, उधर फॉक्सेस आ जाएंगी, उधर कुत्ते आ जाएंगे, उधर सब आके वो भी लोग भी चट कर जाएंगे उसको, वो चींटी आ जाएंगी, फिर वल्चर भी आ जाएंगे वहां पे. तो आप बात समझो कि ये क्या पॉइंट है उसका कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरते, वो पूरी कम्युनिटी को वो हेल्प करते हैं बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इजंट इट?
यस मतलब सर, जंगल राज जो होता है उसमें बड़ा जो प्रीडेटर है, अगर सपोज करो कि कोई जैसे हाथी है सपोज या कुछ है, तो हाथी तो ऐसा कोई जानवरों को मारता नहीं है, हाथी किसी और तरीके से इकोसिस्टम को हेल्प करेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वो प्रीडेटर नहीं है, वो खाएगा नहीं लोगों को जाके। तो हाथी जो है वो अब ऐसा नहीं है कि वो मार देगा और फिर लोग ठीक है, हाथी ने किसी को कुचल दिया तो फिर लोगों का, जानवरों का वहां पे फीस्ट हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट हाथी इंटेंशनली तो किसी को ऐसे मारता नहीं है खाने के लिए, तो राइट। सो प्रीडेटर्स मतलब वो बेसिकली जो दूसरों का शिकार करते हैं। तो उसके लिए ये लार्जर पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इकोसिस्टम्स है उसको किस तरीके से, जैसे ये कैरकस था इसका, ये वेल थी, तो वेल जो है वो, अब वेल ने खुद मर के और दूसरों को जन्म दे दिया, मतलब जिंदा रख दिया। It has really helped the animal community by surviving by in that nutrient deficient area. तो इस तरह से पॉइंट समझना है हमको, ओके। यस सर, Which of the following cannot be inferred from the second para of the passage? अब अगेन थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, कैनॉट बी इन्फर्ड, ठीक है। डी दिल्ली, यस सर, दिल्ली। बॉम्बे। सर बॉम्बे। देखो इसमें बी और डी में आपको डाउट होना वाजिब है, ठीक है। I had to look very carefully at these two. So let's first eliminate the other two options. Top predators like tigers are part of multiple ecosystem. ये तो हम बहुत clearly understand कर सकते हैं। ये कह रहा है it connects ecosystems. That means कि they are a part of multiple ecosystems. So ये तो infer कर सकते हैं। Drastic changes in prey population can have adverse effects on entire. ये भी बहुत clearly बताया। So this is also not the answer. Nutrients are important for ecosystems to thrive. A whale can be an entire ecosystem on its own. Now, let's look at this passage here, second paragraph here. Let's read it a little more carefully. तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से. In the deep ocean, sunken whale carcasses form the basis of entire ecosystems. Form the basis of entire ecosystems. So can we infer that it is the entire ecosystem on its own? सबसे पहला सवाल. रेड वेल है, नॉर्मल वेल तो है नहीं। नहीं, नॉर्मल वेल जो होती है वो भी क्या अपने आप में इकोसिस्टम होती है? कैन वी से दैट? नो सर। नो सर। सर क्योंकि उसके बाद इन न्यूट्रिएंट पुअर प्लेसेस लिख रहा है, तो उसके लिए मतलब लग रहा है कि हाँ न्यूट्रिएंट तो जरूरी हैं, पर ऐसे नहीं। इकोसिस्टम जैसे मैंने आपको अभी बताया, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ओके, एन इकोसिस्टम इज अ लेट्स से अमैलगमेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। उसमें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट वेजिटेशन होती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम। Now, whale, he says, forms the basis. तो इकोसिस्टम का बेसिस फॉर्म करती है कि वो खुद ही एक इकोसिस्टम बन जाती है। ये एक सोचने वाली बात है। इकोसिस्टम में तो बहुत सारी चीजें चाहिए ना। न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट पुअर प्लेसेस में वेल प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स इन द इकोसिस्टम, या ऑल द अदर लेट्स से रेसिडेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो ये डाउटफुल नहीं लग रहा कि वेल कैन बी एन एंटायर इकोसिस्टम ऑन इट्स ओन। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू थ्राइव, ये तो है ना। देखो, जहां न्यूट्रिएंट अगर नहीं होंगे तो इकोसिस्टम कैसे थ्राइव होगा? अगर वहां पे सपोज करो कि 50 टाइप की प्रजाति के लोग रह रहे हैं, जातीय स्पीशीज रह रही हैं, एंड दे डोंट गेट न्यूट्रिशन देयर, देन ऑब्वियसली दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, दे विल वैनिश, एंड देयरफॉर दैट इकोसिस्टम विल नॉट सर्वाइव और थ्राइव। सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स which is being provided by this particular whale, carcass of the whale, and therefore this ecosystem is kind of completed, or whale is a pillar of that ecosystem. So whale is not an ecosystem on its own. So that cannot be inferred that whale can be an entire ecosystem on its own. Sir, this can be inferred. हाँ बोलो सर। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब ये ऑप्शन बी में लिए अपने अपनी एडिशनल नॉलेज लगा रहे हैं, मतलब जो क्यों मतलब मेरे को क्योंकि पैसेज में सर ऐसा मेंशन्ड ही नहीं है। तो आपने अच्छा डी मार्क किया क्या? बी मार्क किया, बॉम्बे बी मार्क करा, बी मार्क। तो आपने डी कैसे एलिमिनेट किया? इसके बेसिस पे फॉर्म्स द बेसिस। हाँ सर, वही पॉइंट था, मतलब दोनों में कंफ्यूजन तो थी, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग गया। ठीक है, आई एम फुल्ली विथ यू बिकॉज आई आल्सो वाज confused initially. I also was trying to understand that can actually a whale be called an ecosystem, but then I went to the what exactly is an ecosystem, and then दूसरा यहाँ पे ecosystem को thrive करने के लिए nutrient तो चाहिए ना, right? And if there is a nutrient poor place, that means ecosystem, then it will not survive for long. What will the animals that are a part of that ecosystem eat? And therefore, if let's say the sunken whale carcasses comes into that ecosystem, then it provides the basis in nutrient poor. So therefore nutrients are needed for ecosystem to thrive. तो infer
कर सकते हैं एक स्टेप आगे बढ़ के. Infer मतलब obviously infer means that you have to read between the lines, and then come to this inference. Whereas whale can be an entire ecosystem. I don't think it can be justified because it forms the basis. So if something forms the basis, then can it be an entire ecosystem? So suppose we say that Muhammad Shami forms the basis of Indian attack. Can we say that Muhammad Shami is the attack, Indian attack? नो सर नो नहीं कह सर, सकते ना, बेसिस ही कह सकते हैं. बेसिस कह सकते हैं ना हम उसको. तो इस तरीके से इसको आई थिंक वी नीड टू लुक एट इट. So rather, it's an elimination of this D that of this you can do and arrive at it. All right. चलिए, तो passages हो गए हैं. Passages I hope ठीक हो गए. अब let's quickly now run through the VA and then we'll kind of come back and collate the entire thing. This was a difficult thing, but there were clues in this. So बताइए, what was your answer? तो 4 1 2 3. मैंने 4 2 1 3 किया था. क्या? 4 2 1 3. Very good. So this is the biggest confusion here. Okay, इसमें ये तो clearly है कि 4 से start करेंगे. Aristotle defined equity as correction of law where it is defective on account of its generality. Now, whether it will be 1 2 or it will be 2 1, can someone tell me what is the very clear pointer to either this or this? Very clear pointer. सर There is मुझे nothing लगा else that कि you need जो to do. सर मतलब जनरल टू 1 स्पेसिफिक में जा रहे हैं. नहीं. The law. सर नहीं, नहीं. वहां पे है ना फर्दर एक्सपेंस टू फेयरनेस. मुझे लगा कि 1 बाद में आएगा, आफ्टर 2 के बाद आएगा. Very good. यस सर. वेरी गुड. देखो, यही इसमें और सर. कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप अगर 4 के बाद यस सर. 1 को लिख रहे हो कि द मीनिंग ऑफ इक्विटी इन इट्स लिटरल सेंस फर्दर एक्सपैंड्स. सी, आपने कहा है कि इक्विटी इज ए. सपोज वी से दैट इक्विटी इज ए. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट यू आर सेइंग दैट इट फर्दर एक्सपैंड्स. नो, इन द सेकंड स्टेटमेंट देन यू विल से इट एक्सपैंड्स. ओके, एंड देन इन द थर्ड स्टेटमेंट यू विल से इट फर्दर एक्सपैंड्स. डज इट नॉट सीम लॉजिकल? पहले आप बोलोगे कि वो एक्सपैंड होता है, फिर बोलोगे ना फर्दर एक्सपैंड. आप बोलोगे ए है, इट एक्सपैंड्स इनटू बी एंड फर्दर इट एक्सपैंड्स इनटू सी. So that is the logic given between A with 4, 2 and 1. That is the only logic that will work. Otherwise 1 and 2 are interchangeable as to my mind. तो काफी इसी वजह से सर काफी कंफ्यूजन होता है. ये एक्सटेंड, फर्दर एक्सपेंड से मतलब ये बढ़ना नहीं, उसी और के इसको आप अगर इसका जस्टिफिकेशन देखोगे तो he has not mentioned this, which I don't know why he missed out. He's trying to justify it in his own way. सर इस वजह से 4 3 2 1 भी सर ऐसा लग रहा था कि एक ऑप्शन मैंने बन रहा है नहीं, कि 3 नहीं हो सकता है. देखो, 3 में तो बहुत यही तो क्लियरली इसमें कंक्लूजन लिखा है था. ना. ये तो बाद में कि कहां से कहां तक देव इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अभी पहले आप इक्विटी की बात कर लो कि खत्म करोगे ना, फिर आप बोलोगे कि वो इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए. तो ये तो एंड में आएगा, बहुत क्लियरली है. 3 विल श्योरली कम इन द एंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना था. यहाँ पे अगर आप देख लेते कि दिस एक्सटेंड्स और दिस फर्दर एक्सपैंड्स, दैट वुड हैव बीन द क्लू एंड देन 4 2 1 3 कुड हैव बीन द आंसर. ठीक है, तो दैट इज ओके. मतलब ये थोड़ा सा फाइनर पॉइंट था, बट दिस पॉइंट यू कैन से कुड हैव लेड यू टू द राइट. हाँ सर एक्सप्लेनेशन से ठीक है, समझ में आ रहा है कि 3 एंड में आएगा, लेकिन जब यहाँ पे लिख रहा था ना हैव इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो उसके बाद यहाँ पे लिख रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बाद स्कोप ऑफ इक्विटी एक्सटेंड. तो उस वजह वो से छोड़ दो मुझे यार, कनेक्ट किया. छोड़ दो. देखो, या तो ये सेंटेंस शुरू में आ सकता है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस या तो शुरू में आ सकते हैं या फिर एंड में आ सकते हैं, क्योंकि आप अभी इक्विटी क्या है वही बताने की कोशिश कर रहे हो ना. आप तो पहले सर उसको थर्ड में डिफाइन है कर ना दो. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. क्या चीज? अरे भाई, थर्ड में प्रिंसिपल है ऑफ ना इक्विटी प्रिंसिपल. क्या है, ये या तो शुरू में आता है कि भाई इक्विटी है क्या, और या फिर ये एंड में आएगा. ये बीच में आ ही नहीं सकता. ओके, जस्ट टोटली रिमूव दैट थॉट प्रोसेस. यस अशांक. ओके सर ये भी जनरल टू स्पेसिफिक ही जा रहा था सर. 2 से मैंने 1 पे गया क्योंकि सर 1 और एक्सपैंड कर रहा है और डीप जा रहा है उसमें. नहीं, देखो, मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता ना तो 1 would have been a better follow up for 2, because this talks about defining equity. Defining means giving the meaning. Okay, so meaning, and this also talks about meaning. See, this defined equity as correction of law. It further went to this thing, and then the scope of equity. तो वैसे कायदे से देखा जाएगा तो फिर मीनिंग पहले, फिर बाद में स्कोप आ रहा है. मीनिंग, स्कोप, मीनिंग थोड़ा सा वो होता है, लेकिन मतलब लेट्स नॉट हाइपोथेटिकली डिबेट. मैंने आपको मतलब मेरा व्यू बता दिया. इसमें बहुत क्लियरली एक्सटेंड्स और फर्दर एक्सपैंड, दिस वुड गिव यू द क्लू. देयर इज नो अदर जस्टिफिकेशन. आई मीन, कोई ऑथर इसको 1 को पहले, अगर ये यूज नहीं करना आपको, अगर सपोज यू इग्नोर दिस, देन यू कैन पुट 1 हियर, यू कैन पुट हियर, डजंट मैटर. कोई अंग्रेजी का लॉ
कोई अंग्रेजी का ग्रामर का कुछ भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो, एक पैराग्राफ को, एक सेंटेंस, एक उसको 50 राइटर 50 अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कई जो मतलब गलत और मूर्ख लोग जो पैरा जंबल लेके आ जाते हैं, दीज पीपल you know which give these ambiguous kind of para jumbles, they have the same problems. They think that कि वो जो वहां लिखा हुआ है वो भगवान का बोला हुआ, भगवान का गॉड्स डिक्री है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, there is nothing like that. Same thing can be written in multiple ways. Okay, so it is not, unless there is a very clear cut order that is emerging, very clear order that is emerging, you can't say that this is the definitive thing. That is the problem with अंग्रेजी। okay, कि उसमें हर आदमी, तो इसलिए कोई भी 4 सेंटेंस उठा के आप पैरा जंबल नहीं बना सकते। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। इसमें बहुत आराम से आपको एक क्लू मिल जाएगा जिससे आप इसका आंसर बताओगे। तो टेल मी व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज दैट क्लू? कैलकटा। सर थर्ड के बाद वो रेदर लिख रहा था, थर्ड के बाद रेदर इट स्टेटेड सिंपली इट, करेक्ट, ठीक है। ये जो इट लिखा हुआ है, दिस कैन रेफर टू ओनली दिस सेंटेंस, देयर इज नथिंग एल्स, एंड देयरफॉर अगर इसका किसी का गलत हुआ तो प्लीज रीरीड इट। इतना कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इट से ही क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग इन दिस सेंटेंस दैट टॉक्स अबाउट इट। ओके, सो थर्ड वाज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, व्हाट इज दिस? द कैलकाटा। द बॉम्बे। ओके, तो लेट अस लुक एट द, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। नैरेटिव एज इट इज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस इज नॉट merely an incidental stylistic feature of historian's craft, but essential to historic explanation. Narrative presupposes a world of things that endure through change. तो नैरेटिव क्यों यूज करते हैं हिस्टोरियन? खाली ये स्टाइलिस्टिक फीचर नहीं, ये एसेंशियल है। स्टोरीज fill in the gaps in our experience, thus make continuity visible. नैरेटिव स्टैंड्स प्रॉक्सी फॉर एक्सपीरियंस। तो ये आइडियली जो है नैरेटिव जो है, ये आपके एक्सपीरियंस, आपने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है हिस्ट्री में, हमें क्या पता कि पिछले हम 1500 1500 में थे ही नहीं, 1600 में थे ही नहीं हम। तो जो नैरेटिव है वो उस चीज को फिल करता है जगह को। दो दिस आइडियल कैन नेवर बी अटेन्ड, लेकिन ये कभी भी अटेन हो नहीं सकता। नो क्राइटेरियन कैन बी फॉर्मुलेटेड दैट सिग्निफाई व्हेन अ स्टोरी इज कंप्लीट इनफ। द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी इनफिनिट डिटेल task continuous, yet the historians cannot be radically subjective because their story is always limited by chronology of event. तो नैरेटिव यूज करना है वो प्रॉक्सी होता है एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन फुल्ली अपना काम नहीं करता। और हिस्टोरियन जो है वो लिमिटेड होता है उसका जो भी नरेशन है, बिकॉज ऑफ क्रोनोलॉजी, लिमिटेशंस ऑफ क्रोनोलॉजी एंड एक्यूरेसी। ये सब मेन पॉइंट है इसके। हिस्टोरियंस यूज नैरेटिव टू फिल गैप्स इन स्टोरीज दैट नीड कंटिन्यूटी एज हिस्ट्री इज कंस्ट्रेन्ड बाय क्रोनोलॉजी एंड एक्यूरेसी ऑफ हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय क्रोनोलॉजी। ओके, हिस्ट्री इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय क्रोनोलॉजी, देयर स्टोरी इज लिमिटेड। जो हिस्टोरियंस की स्टोरी है, इट इज नॉट हिस्ट्री इज कंस्ट्रेन्ड, दिस इज रॉन्ग। एंड इट डजंट इवन टॉक अबाउट कि ये स्टैंड्स प्रॉक्सी फॉर एक्सपीरियंस व्हिच इज दिस आइडियल कैन नॉट बी अटेन्ड एंड ऑल दैट, ये भी नहीं बताया इसमें। दिस इज रॉन्ग। कंस्ट्रेन्ड बाय क्रोनोलॉजी एंड डिटेल्स, historians use narrative to bring continuity to the experience that historical explanation cannot provide on their own. Now, okay, this looks okay, but there is one problem with it. He has mentioned that they use narrative to bring continuity to the experience, but ये नहीं बोला इसमें कि जो भी proxy for experience है, continue to the experience, this is not perfect. This ideal can never be attained. So this can kind of suggest that whatever narrative is being used, it does the job that it is supposed to do. That means it can bring continuity to the experience. That means it paints this thing in a very positive light, that this narrative does the job that it is supposed to do. Whereas this passage does not mean that. It says that ये जो continuity लाने की बात हो रही है, ऐसा दे आइडियली करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये होता नहीं, राइट? तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि historians try to use narrative to bring continuity, तो ये फिर भी मोर बेटर हो जाता है ये ऑप्शन और जस्टिफाई हो सकता था, राइट? अगर आप समझें कि हिस्टोरियंस ट्राई टू और यूज नैरेटिव टू ट्राई टू ब्रिंग कंटिन्यूटी, तो ट्राई टू इज ओके कि इसने कोशिश की लेकिन ये अटेन नहीं हुआ, ठीक है, वो फिर भी ठीक हो सकता था। या ट्राई टू अनसक्सेसफुली ब्रिंग कंटिन्यूटी, ओके, और इट डजंट हैपन, ऐसा कोई लिखता। समझ रहे हो आप बात को? अब आप इसको देखो, narrative is an imperfect proxy for experience, yes, but it is persisted with to reflect the continuity of a story and historian's perspective through limitations of chronology and accuracy. Now this one tells you this point also कि ये imperfect proxy है, लेकिन फिर भी इसको हम यूज करते हैं क्योंकि और कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं। This makes it correct and essential to bring to where the lag because of limitation, ये बिल्कुल ही गलत है। C was the right answer. So I hope you've been able to understand this. Little difficult था, थोड़ा सा difficult था, I agree, but not illogical or anything. This was clear. This was a
दिस वाज ओके, दिस वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। चंबल बताइए इसमें क्या रखा हमने, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक तो इसमें क्लू है एनालॉगसली, 4213 नहीं हाँ 4-2 करेक्ट। देखो एनालॉगसली द कैसे? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इम्ब्यूड विद दिस रिजल्ट्स इन द perfection of social harmony। तो it is the harmony of organic growth that reproduces variety of color, the complete whole। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 2 में एनालॉगस सिचुएशन बताई गई है, एंड देन इंडीड राइट, अनार्किज्म यहाँ पे आया, ठीक है, और इंडीड अनार्किज्म उसको एक्सपैंड किया गया, alone makes non-authoritarian this and then under present conditions, तो 4-2-1-3 that's the correct answer। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, 4-2 तो पकड़ देना चाहिए था आपको, मे बी यू नो कोई 3-1 कर देता। मैंने मतलब सर 3 हाँ? को स्टार्टिंग में कर दिया था। किसको? 3 को सर मतलब स्टार्टिंग कर दिया था, स्टेटमेंट 3 को 3-4-2-1 कर दिया। देखो आप एक बार बताओ मेरे को कि सी क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि आप एक आइडिया दे रहे हो, आप एक कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, तो आप उस चीज को पहले दोगे ना या फिर एंड में दोगे? ये जैसे फ्लावर वगैरह वाली बात है ना, ये बीच में नहीं लाएंगे हम। सी जैसे मैंने आपको वो वाले में पिछले वाले में बताया था, वो इक्विटी वाले में, कि वो बीच में नहीं आएगा। एक तो एक जो फ्लो होता है ना, वो एक that you start off with something and then you go to your main point। So here you are trying to first give an example of a flower, ठीक है, and then you are giving an analogy here कि इसी तरह से ये भी होता है, and you are introducing anarchism, and then anarchism को आपने expand किया कि वो करता क्या है, और फिर उसके बाद में उसका करंट वो क्या चल रहा है ये बता दोगे। ऑलराइट चलो ठीक है, तो उसके ऊपर भी ज्यादा नहीं करेंगे डिस्कस। यस दिस वन, व्हाट इज द आंसर? तो कैलकाटा, ओके। और कुछ तो नहीं है, और क्यों है कैलकाटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लीट मोटिव क्या होता है? लीट मोटिव मतलब कि सम रिकरेंट पैटर्न, ओके। लीट मोटिव एक बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे कि आपने देखा होगा टाइल्स होती है, मोज़ेक टाइल्स होती हैं, या किसी भी तरह की टाइल्स होती है, उसमें पैटर्न्स होते हैं ना। जैसे सपोज करो कि आपके घरों में अपने ऐसी कोई टाइल का एक पैटर्न है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा होता है सपोज करो, तो ये टाइल्स सब मिलके ये पैटर्न बना रही है, फिर आगे फिर उसके बाद में ऐसा ही एक और पैटर्न हो गया अगले वाला, ठीक है, सॉरी माय ड्राइंग इज अट्रोशियस, फिर ऐसा ही एक पैटर्न हो गया, तो ये एक पैटर्न लीट मोटिव बोलते हैं। या फ्लावरी डिजाइन होती है, किसी में फ्लावर बने रहते हैं ऐसे ऐसे, तो ये सब लीट मोटिव्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको लिटरली भी यूज कर सकते हैं और फिगरेटिवली भी यूज कर सकते हैं, ओके। एंड दिस इज थीम अक्रॉस, I mean it could be art, it could be music also, it could be any kind of expression। So leitmotiv of those who despised film theater, their final and apparently insuperable argument continues to be the unparalleled pleasure that accompanies the presence of an actor। तो अब देखो यहाँ पे दो बातें की गई, एक थिएटर और एक फिल्म्ड थिएटर। फर्क क्या है? तो फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे एक तरफ बात की जा रही थिएटर की और एक तरफ फिल्म की बात की जा रही है। तो जो लोग फिल्म्स को डिस्पाइज करते हैं, मतलब हेट करते हैं, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि देखो अगर हम किसी एक्टर की प्रेजेंस में हो तो वो जो हमें खुशी और मजा देगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब अगर थिएटर होता है तो थिएटर में तो वो एक्टर है, चाहे कोई महान एक्टर हो, वो आपके सामने एक्ट कर रहा है। फिल्म में तो वो आपके सामने एक्ट नहीं कर रहा, राइट? उसने तो एक्टिंग कर ली, फिर आपके सामने पिक्चर चल रही है, ही इज नॉट इन योर प्रेजेंस, राइट? What is specific to theater is the impossibility of separating the action and the actor. Elsewhere, he said the stage welcomes every illusion except that of the presence. The actor is there in disguise with the soul and voice of another, but he is nevertheless there, and by the same token, space calls out for him solidity. On the other hand, inversely, the cinema accommodates every form of reality save one, the physical presence of actor. तो सिनेमा के अंदर physical presence नहीं होती. It is here the essence of theater lies. Then undoubtedly, cinema can in no way return to any parallel with it. Right? ये then नहीं होना चाहिए, that होना चाहिए, और then है, ठीक है, if है फिर then ठीक है। तो सिंपल आर्ग्यूमेंट है इसमें कि सिनेमा और थिएटर में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें एक्टर होता है, इसमें नहीं होता, एंड देयरफॉर ऑथर इज ऑल फॉर दिस, दैट्स इट। सिनेमा कैन नॉट इक्वल थिएटर विदाउट ऑफरिंग। ऐसा नहीं बोल रहा है कि अगर सिनेमा में भी, और उसको सिनेमा में कैसे आएगा एक्टर, क्या वो स्टेज पे खड़ा हो जाएगा और पिक्चर पीछे चल रही है? तो ये तो एब्सर्ड है ऑप्शन, बिल्कुल। द ओनली रियलिटी सिनेमा डजंट ओनली, ये ओनली वाले ऑप्शन मैंने आपको वैसे ही बताया, बट ठीक है चलो, ओनली बोला है इसमें, एवरी फॉर्म ऑफ रियलिटी सेव वन, तो ठीक है, ओनली जस्टिफाइड। Only reality cinema doesn't accommodate the presence of an actor, which is the only part of a theater that isn't an illusion. Okay, रख लेते हैं इसको, distorted नहीं लग रहा है। Critics of cinema, despite cinema's great resemblance to reality, seek pleasure in actors' physical presence, which makes theater more pleasurable। तो ये बात यहाँ पे नहीं कैप्चर की गई।
सर यहाँ पे मेन सिर्फ क्रक्स एक, सी में है। हाँ ये सी में है। ये जो बी में बताया गया एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट यहाँ का निकाल के बताया कि सिनेमा में ये होता नहीं होता, इसमें ये होता है, लेकिन उससे क्या, ओके, हाउ डज इट इम्पैक्ट, तो वो ऑप्शन वो बी में कैप्चर नहीं किया गया है, एंड दैट इज कैप्चर्ड इन सी, एंड देयरफॉर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्रिटिक्स ऑफ सिनेमा सीक प्लेजर इन actors' physical presence. While cinema mimics reality more closely, the presence draws many despite its, ये गलत है, more closely वगैरह वाली बात नहीं हो रही है कि सिनेमा मिमिक्स मोर, ऐसा नहीं है। सिनेमा में बाकी सब चीजें होती हैं, सिर्फ एक्टर नहीं होता ऊपर, ठीक है। Alright, so C was the answer. Yes. Now this was a little bit of a challenging question. Again, इसमें भी एक सेंटेंस जो है वो आपको चैलेंज करेगा। हिस्टोरियन 2 से स्टार्ट करेंगे। टोनी जूट सेज दैट एल्बर्ट कैमस नॉवेल द प्लेग was not about the plague in the same sense the King Lear is about a king named Lear. Now, I mean, you can go to 1, you can go to 4, because genome is also a testing ground. So here this becomes a testing ground and genome is also a testing ground, so we may connect like this, isn't it? यस सर, यही किया यस था। सर, यही करा है। तो काफी लोगों ने यही किया था, even I had in fact done this, okay, but when I looked at the answer it says 2413, so obviously that gets me thinking that was I too presumptuous, or was I too quick to connect this with this? So then I evaluated, let us evaluate this option. The historian Tony Jutes once said the plague was not about plague. In the plague, a biological cataclysm becomes the testing ground for our fallibilities. You cannot read the plague except as a thinly disguised allegory of human nature. मेरे ख्याल से आप 1 और 4 या 4 और 1 दोनों को इंटरचेंजेबली लगा सकते हो. There is absolutely no problem in that. And genome is also a testing ground. Rather, this is better because then in the end, you say that the genome is also a testing ground, so it flows better after 4. So agar if you go from 2 to 4 and then 1, you cannot read the plate except as a thinly disguised allegory of human nature. The genome is also a testing ground, although reading it does not require. तो यहाँ पे allegory और allegory को कनेक्ट कर दिया गया है, इस वाले ऑप्शन में allegory और allegory को कनेक्ट कर दिया गया. तो ठीक है, ये भी मतलब I don't kind of dispute this thought process also, but nor can I say that this is wrong. So this is not an example of a good parajumble, as I've been saying, and to my mind these both may work. These both may work. They absolutely, मतलब देखो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, ठीक है, इस तरह के, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि ये 2143 क्यों नहीं, और इवन 2413 कैन बी इक्वली vehemently justified. So this type of questions should not be given, but our friends keep giving it because they don't have anything else to do. They don't look or think too deeply. They will have their own way of justifying it. Okay, they will say that no ये ऐसे ही आएगा और वैसे ही आएगा. But मेरे हिसाब से इसमें दोनों ही चल जाएंगे, इसमें दोनों ही चल जाएंगे. Yes, प्रिंस बोलो. सर मतलब द प्लेग और इन द प्लेग मुझे ज्यादा बेटर लग रहा था वहां पे कि ये दोनों ज्यादा सही रहेगा. देखो मैं सब उसमें घुस ही नहीं रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. आई एम ओनली सेइंग दैट कि देखो ज्यादा बेटर और कम बेटर थी ऐसा नहीं होता. जब कोई लिखने बैठता है ना, तो किसी ने भी 4 सेंटेंसेस लिखे, तो वो अगर वो ऐसा सोचने लग जाएगी यार कल को मेरे 4 सेंटेंस उठा के किसी इंस्टीट्यूट ने पैराजंबल में दे दिए तो मैं क्या करूंगा, वो तो मुझे गालियां बकेंगे स्टूडेंट्स की, यार ये देख तेरा आर्टिकल में से उठा के लाया और उन्होंने गलत कर दिया. तो ऐसा अगर सोचने लगेगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी रियली टेकन कि अब इसमें इसको जस्टिफाई करने का अगर आप इन गधों को दे दो, और आवर फ्रेंड्स एट दीज इंस्टीट्यूट्स, दे विल फाइंड 10 different reasons to justify this, that this moves from general to specific, this should be there at first because this mentions allegory first and this is connected to this allegory. They will find 10 reasons to justify it, okay, which is all crap as per me. तो इसलिए इसमें नहीं घुसते हम ज्यादा, इससे ज्यादा इसीलिए. और पैराजंबल के साथ में ये इशू है ही है. दैट्स व्हाई आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू दैट जहाँ पे बहुत क्लियर कट मिलता है आपको वहां करो, नहीं है तो मारो उसको और आगे चलो. और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये दुखी होने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्यों गलत हो गया. हाँ, अगर आपने कुछ ड्रास्टिक गलत कर दिया, आपने पहला सेंटेंस ही गलत पकड़ लिया इसमें, देन यू शुड डेफिनेटली क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके, योर रीडिंग कैपेबिलिटी. बट इफ यू मार्क 2143 एंड 2413, आई वुड से बोथ आर करेक्ट. ओके, लेट्स मूव अहेड. विजुअलाइजेशन वाले में बताइए आंसर. ये इजी था क्वेश्चन. समरी अहमदाबाद. हाँ, तीनों में सबसे इजी समरी मेरे ख्याल से. सबसे इजी क्या, वो थिएटर वाली भी इजी थी, पहली वाली डिफिकल्ट थी, नैरेटिव वाली, बट दिस आल्सो वाज आई वुड से इजी. इज देयर एनीबॉडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? डू आई नीड टू एक्सप्लेन? आई डोंट थिंक सो. फर्स्ट में बस मेरे को थोड़ा सा इशू लग रहा था, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या करेक्ट है?
potential is high for bad visuals to impair public understanding of science. Scientists risk impeding the layman's understanding through misleading information. कर सकते हो आप. देखो ये लिखा ना, can even mislead the as science is littered with poor data visualization that confound readers and can even mislead the scientists to make them. तो we can infer this. Okay? कर सकते हैं. बाकी तो बहुत ही बेकार है ना. हाँ बाकी atrocious. So again वो ये है कि you need to compare different options. You will never find a perfect. Again, I keep saying this again and again. You should keep listening to it also and drill it into your heads that you will never find a perfect. इम्परफेक्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ज्यादा इम्परफेक्ट लग रहा था. क्या चीज आपको एक्सेप्टेबल है और क्या चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. What cannot go down your throat, what you cannot swallow, what you can swallow. Okay. This was a little difficult question, no doubt. This was a difficult question, but impossible नहीं है. इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा. It will take a little bit of time. Jasper's distancing from a more popular idea of existence has much to do with the aims and ends of his philosophy of existence. His 3-volume philosophy aims to explore how to exist in world philosophically. Rather than act of reasoning, philosophy and activity, it is relationship. तो ये 1 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. क्योंकि अब आगे देखिए, आप 3 volumes of philosophy can be seen as instruction manuals. तो definitely this cannot come in 2. Definitely, okay? Because इस sentence में 2 and 4 easily eliminatable है. 2 and 4 easily eliminable. Correct. 2 and 4 easily eliminate होगा क्योंकि these stages of existence लिखा हुआ. तो अब आपको चैलेंज आएगा कि आप इसमें 1 से करो पूरा डालोगे कि 3 में डालोगे. तो अब लेट्स इवैल्यूएट दिस. दे स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेल्फ, फाइंड सेल्फ इमीडिएटली एंड फ्रॉम देयर वन हैज टू ट्रैवल हाउ टू एग्जिस्ट रादर देन व्हाट एक्जिस्टेंस इज, रादर देन एन एक्ट ऑफ रीजनिंग, फिलॉसफी एंड एक्टिविटी. देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं रादर देन व्हाट एक्जिस्टेंस इज. और अब इसका एक्जिस्टेंस एंड फिलॉसफी आर नॉट सिनोनिम्स और इंटरचेंजेबल, राइट. अगर सपोज करो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि रादर देन एन एक्ट ऑफ रीजनिंग और व्हाटएवर एग्जिस्टेंस इज ब्ला ब्ला ब्ला, देन वी कैन से दैट कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो फिलॉसफी क्या चीज है, ये इस बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ये 3 पे नहीं आएगा, इसलिए ये 1 पे आएगा. तो 1 इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा इसको करने में टाइम लगेगा. 2 and 4 you can easily eliminate. 1 and 3 you need to think a little bit and therefore 1 is the answer. And I think जितने लोगों ने भी वहाँ पे किया है ये गूगल फॉर्म में, कई मोस्टली लोगों ने इसको सही किया है. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने सही पकड़ लिया. कुछ लोगों ने इसको गलत पकड़ा है, बट सर ये तब भी थोड़ा टैकलेबल था, लेकिन आरसीज के आंसर्स मतलब बहुत ज्यादा वैसे थे कि ट्रिकी थोड़े से. tricky, correct. चलो, तो let me now let's recap now. Anyone with 20 by 20, 19, 18, 17, 16 है क्या कोई? 15, 14, 13, 12. Okay, very good. 100. Okay, very good, excellent. 11, 10. Okay. 9. Okay. 8. So good. 8 sir. Good. All right. So let's let me just stop the recording here. Let me then